Good morning. Today we are going to start off with a fresh chapter, and the name of the chapter is Primary Markets. Okay, if you remember, I guess somewhere around day 2 or day 3, I told you that entire capital markets can be divided into two parts. And जिसमें of course we are not even discussing about money markets. Money markets भी एक अलग segment होता है वैसे. So money market, capital market वैसे दो major segment होते हैं, but money market completely we are ignoring right now. It has got nothing to do with stock market. Okay, stock market कहाँ पे आता है? It comes under the head of capital markets. Capital markets is further divided into two parts. कौन सा आता है अपना? Primary market and secondary market. Do you remember what was the difference between primary market and secondary market? Primary market में क्या होता है? Owners of the company are ready to sell the shares to whom? People like you and me. Could it be institutions? Yes, like अगर आपको ये नाम याद है DII, FII, ये सबको शेयर्स बेचने के लिए ओनर्स, प्रमोटर्स रेडी रहते हैं. ओके, in primary markets, if I were to buy shares of any company, can I directly buy from anyone else or I have to buy from the promoters? I have to buy it from the promoters. Okay, अब इसमें दो अलग अलग फंडाज आ सकते हैं. So थोड़ा ध्यान से सुनो. In, I'm sure you have heard about this term IPO. IPO क्या होता है? Initial public offer. The name itself suggests initial, मतलब क्या? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं? वो पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं. क्या ऑफर कर रहे हैं? शेयर्स ऑफर कर रहे हैं. शेयर्स ऑफर कर रहे हैं मतलब ही, कैन आई से दे आर ऑफरिंग ओनरशिप इन द कंपनी. Whenever I'm saying they are offering shares, can I say in simple words, they are offering ownership to the ownership of the company to the shareholders, to the new people in the company. Okay, अब IPO तो फर्स्ट टाइम हो गया. So let us take an example. Reliance Industries. Reliance Industries को एक fresh funding की जरूरत है. Example. And they want this fresh funding from people like you and me. Can they come up with an IPO? Can they come up with an IPO? Shall I repeat my question? Reliance Industries है, they are in need of fresh funds. ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है उनको. Can they come up with an IPO? No. Why? They are already listed on the stock exchange. They are already present in the secondary market. जो already secondary market पे है, वो वापस से primary market में नहीं जा सकता है through IPO. Okay, because what it says is it's an initial public offer. First time कर रहे तो. If you remember, I had given you that example also कि कोई भी स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, फर्स्ट टाइम जब भी आता है तब क्या होता है? स्टारिंग, हाँ सॉरी इंट्रोड्यूसिंग. पहली बार के लिए होता है इंट्रोड्यूसिंग, उसके बाद क्या होता है? स्टारिंग. कुछ वैसे ही है. ये वाला IPO इज व्हाट? इंट्रोड्यूसिंग वाला फंडा. और स्टारिंग वाला फंडा इंट्रोड्यूसिंग वाला फंडा. बट अगर सेम कंपनी को वापस से पीपल लाइक यू एंड मी, इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग लोगों से पैसा रेज करना है, तो व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल विद देम? दे कैन गो हेड विथ एन NFO. NFO के बजाय बेटर वर्ड न्यू फंड ऑफर, थोड़ा उल्टा हो गया. FPO इज द करेक्ट वर्ड. NFO मैंने गलती से बोल दिया, दैट इज फॉर म्यूचुअल फंड्स. ओके, IPO एक होता है, एंड एक होता है FPO. व्हाट इज FPO? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं. सी दिस वर्ड इज कॉमन. पब्लिक को ही ऑफर किया जा रहा है ना. So if Reliance wants to again have fresh funding, then what will it be called? FPO. FPO मतलब follow on public offer या फिर further public offer. But right now we are going to focus on what? IPO. यहाँ तक भी okay? अब IPO में क्या हो सकता है? Let us understand. Because in IPO only I'm going to come up with one more concept which is known as OFS. नाम सुना है कभी आपने? OFS. Offer for sale. CA इंटरमीडिएट में इसका एक माइनर रेफरेंस आता है, CA फाइनल में भी इसका एक माइनर रेफरेंस आता है. फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डिड नॉट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन IPO एंड OFS. बट वेन एवर कंपनीज रेज फंड्स, बहुत क्लियरली जो एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूज़पेपर में, हैव यू सीन अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट? बहुत बार आता है ऐसे कि दिस कंपनी इज वांटिंग टू रेज फंड्स. अब रेज फंड्स थ्रू व्हाट? थ्रू IPO लिखा रहेगा या फिर थ्रू OFS लिखा रहेगा. Any idea on what is the difference between OFS and IPO? नहीं, ये तो नहीं बोल दो, मैं बता दूंगी. नहीं पता है? ओके, सो IPO में क्या होता है वर्सेस OFS में क्या होता है? क्विक. IPO में सी फाइनली शेयर्स ही ऑफर करने हैं. फाइनली शेयर्स ही ऑफर करने. शेयर्स आए कहां से इज द क्वेश्चन. शेयर्स आए कहां से इज द क्वेश्चन. पॉसिबिलिटी नंबर 1, प्रमोटर के पास अपने जो शेयर्स है, प्रमोटर्स होल्डिंग का जो है, they sell their own stake to people like you and me.
दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 1. पॉसिबिलिटी नंबर 2, ध्यान से सुनो क्या होता है. प्रमोटर बोलता है वी डोंट वांट टू डाइल्यूट आवर स्टेक, वी डोंट वांट टू सेल आवर ओन शेयर्स. तो कहां से आएंगे शेयर्स? नए शेयर्स बनाओ. क्या ना कंपनी मेक इट्स शेयर्स. शेयर बना सकती है क्या कंपनी? अपने एडिशनल शेयर्स बना सकती है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक शेयर सर्टिफिकेट बुक भी दिखाया था, याद है ना? डे 2, डे 3 व्हाटएवर, मैंने आपको एक शेयर सर्टिफिकेट प्रॉपर बुक दिखाया था. अब इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, नए शेयर सर्टिफिकेट बनाओ. कैन कंपनी डू दैट? यस. अच्छा, आपको थोड़ा सा अगर अजीब सा लग रहा है कि घर पे ही शेयर सर्टिफिकेट बनाओ, वैसे काइंड ऑफ अ थिंग, तो प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एंड एक क्या होता है? इशूड कैपिटल. सुने ये वर्ड्स? ऑथोराइज्ड कैपिटल एक होता है, एक इशूड कैपिटल होता है. अज्यूम करो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज 1000, just as an example, authorized capital is 1000 and issued capital till date is only 300. Can I say company does have a margin to issue fresh shares? कितने? 700. उनके पास ये चॉइस तो है, उनके पास ये ऑप्शन तो है. तो दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान से सुनो. पॉसिबिलिटी नंबर 1, अच्छा सबसे पहले क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या डिस्कशन क्या चल रहा है? कंपनी वांट्स मनी. कंपनी वांट्स मनी, तो कहां से उठा सकती है कंपनी पैसा? इसको हम टिपिकली बोलते हैं आइदर थ्रू ओन फंड्स या फिर लोन फंड्स. फंडा बोलो एक बार फिर से. कंपनी पैसा कहां से उठाएगी? आइदर ओन फंड्स या फिर लोन फंड. लोन फंड के बारे में बात चल रही है क्या? नहीं. लोन किससे लिया जाता है? जनरली बैंकर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक राइट नाउ. वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग ओन फंडिंग. ओन फंडिंग मतलब ओनर्स से लिया हुआ फंडिंग. ओनर्स किधर है? लेकिन इधर जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे वो भी तो ओनर्स ही बनने वाले हैं ना. सो कह रहे हैं आई एम टेकिंग द फंडिंग नो वन बट फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द कंपनी. अब ये ओनर्स से जब हम फंडिंग लेंगे तो उनको कुछ तो बदले में देना पड़ेगा. हम अगेन डे 2 है शायद, ये डे 2 या डे 1, बदले में क्या देते हैं हम उनको? शेयर सर्टिफिकेट देते हैं. एंड डू वी प्रॉमिस एनी रिटर्न? डू वी गारंटी एनी रिटर्न? या फिर इच्छा है तो दे देंगे, ऐसे बोलते हैं रिटर्न. रिटर्न क्या होता है? शेयर्स के ऊपर रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड. सो कंपनी क्या बोल सकती है? गारंटीड डिविडेंड देंगे या फिर हमारा चॉइस रहेगा? चॉइस रहेगा. यहां तक याद है ना? सो क्या हो रहा है देखो एक बार फिर से. कंपनी दे रही है शेयर्स टू हुम? द न्यू शेयर होल्डर्स. क्वेश्चन इज शेयर्स आए कहां से? शेयर्स आए कहां से? दो सोर्सेस हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये जो ऑलरेडी इशूड कैपिटल है ना, कितने का? 300. इसमें प्रमोटर का अपना कुछ तो होल्डिंग रहेगा. लेट अस अज्यूम दैट आउट ऑफ दिस 300 द करंट स्प्लिट इज समथिंग लाइक दिस. प्रमोटर के पास 200 के शेयर्स है, अदर्स के पास 100 के शेयर्स है. क्या तक ओके? अदर मतलब अदर पीपल. ओके, अदर पीपल मतलब कौन हो सकता है? कुड इट बी पीपल लाइक यू एंड मी ऑल्सो? यस. कुड इट बी म्यूचुअल फंड्स? कुड इट बी इंश्योरेंस कंपनीज? यस. अगर ये अदर्स, अच्छा अगर कंफ्यूजन पॉइंट है, आप बोल रहे हैं मैम अभी तो आईपीओ लेके आ रहे हैं ना, हाउ इज इट पॉसिबल दैट अदर्स के पास शेयर्स है? शायद ये कंफ्यूजन अगर है तो आईपीओ में अदर्स के पास कैसे शेयर्स है? प्लीज अंडरस्टैंड, सीए इंटरमीडिएट में आप और एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट. सुना है ये वर्ड कभी? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? ओनली टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल यू आर ऑफरिंग शेयर्स. प्राइवेट प्लेसमेंट को अगर एक सिंपल आपको उसका एक्चुअल लॉ में क्या लिखा है बताती हूँ. सिंगल टाइम जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो दैट नंबर शुड नॉट बी मोर देन 200 मेंबर्स. नॉट मोर देन 200 मेंबर्स यू कैन इशू शेयर्स. ओल्ड कंपनीज एक्ट में ये 50 का लिमिट था. 50 का लिमिट अब 200 हो चुका है. इन सिंपल वर्ड्स लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल. ध्यान से सुनो. मेरी कंपनी है एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है. अब एकदम सीक्वेंस में लेके जा रही हूँ, सो फुल फोकस. व्हाट इज द नेम ऑफ माय कंपनी? एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. मुझे थोड़ी सी ज्यादा फंडिंग चाहिए, बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं चाहिए मुझे. ओके, थोड़ी सी ज्यादा फंडिंग चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू, टेल मी. कैन आई आस्क अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कम टू मी एंड लिसन टू माई प्रेजेंटेशन? अब मैं क्या करूं, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम प्रैक्टिकली ये सब होता है. एक बार फिर से, हु एम आई? आई एम एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है. एम आई गोइंग टू टेक लोन फंड और एम आई गोइंग टू टेक ओन फंड? आई एम गोइंग टू टेक ओन फंड. ओन फंड के लिए मैंने क्या किया, आप सब 50 लोग हैं, मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा ना मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे देंगे क्या?
आप बोलेंगे क्या करती क्या है कंपनी आपकी, कुछ तो बताओ कंपनी के बारे में. सो आई गिव अ गुड प्रेजेंटेशन टू, ये कंपनी ऐसे ऐसे करती है. आपको अच्छा लगा, यू से ओके वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. आप पूछ रहे हमको क्या मिलेगा. आई एम टेलिंग यू दैट आई विल गिव यू द ओनरशिप इन माई कंपनी डायरेक्टली. यू विल बिकम द पार्ट ओनर्स ऑफ माई कंपनी. अच्छा लग रहा है डील? हाँ बोलो, डील अच्छा लग रहा है ना. एवरीवन वांट्स टू बिकम ओनर ऑफ माई कंपनी. यस. सो आप मुझे क्या दोगे? मनी, पैसा. व्हाट विल आई गिव यू? शेयर्स. अभी भी मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या बन गई पब्लिक लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड है. क्यों? नॉट मोर देन 200 मेंबर्स का एक प्राइवेट गैदरिंग बुलाया था मैंने. एंड मैंने इसको कौन सा प्लेसमेंट बोलते हैं? आई कॉल इट एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट. अभी भी ये कंपनी पब्लिक नहीं है, अभी भी ये कंपनी प्राइवेट ही है. आप सिर्फ 50 लोग हैं जिनको मैंने ये प्राइवेट प्लेसमेंट किया था. यहां तक भी ओके? पक्का? आप सबको मिलके मैंने कितने शेयर्स दिए? आप सबको मिलके मैंने कितने शेयर्स दिए? 100. मेरे पास कितने? 200. टोटल मिला के कितने शेयर्स इशूड है कंपनी के? 300. व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? 1000. फ्लो में अभी तक क्लियर है? पक्का? स्टिल एम आई अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? स्टिल आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. 2-3 साल और गुजर जाते हैं. माई कंपनी इज डूइंग रियली वेल. Now I should say our company is doing really well because you are also the shareholders of the company. So company को और भी बड़ा होना है अभी. So you all say let us take fresh funding. और पैसा उठाते हैं और expand करते हैं. अब मैं बोलती हूँ अब fresh funding. Now जितने भी जाने पहचाने लोग थे उन सबसे पैसा तो ऑलरेडी उठा लिया. So you all say let us go on a big scale. Big scale मतलब क्या करना पड़ेगा? We'll have to come up with an IPO. Again, can a private limited company directly go ahead with an IPO? No. उसके बीच में एक स्टेप आ गया, फिर कन्वर्ट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, वो भी हमने करवा लिया. थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहे हैं. हो गया अपना पब्लिक लिमिटेड. ओके. एंड वंस आवर कंपनी हैज बिकम पब्लिक लिमिटेड, नाउ वी वांट दैट वी शुड रेज मनी नॉट ओनली फ्रॉम नोन पीपल बट इट कुड बी इवन अननोन पीपल ऑल ओवर इंडिया. इसीलिए हम क्या लेके आते हैं? आईपीओ लेके आते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि 300 शेयर्स ऑलरेडी इशूड है. अब ध्यान से, 300 शेयर्स ऑलरेडी इशूड है. मेरे पास कितने हैं? मेरे पास कितने हैं? 300 में से मेरे पास कितने हैं? 200. पी वॉज प्रमोटर. ओके. अदर्स आप सबके पास कितने हैं? 100. सवाल ये आता है कि इंडिया के लोगों को जब हम ये शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, कौन से शेयर्स ऑफर कर रहे हैं इनमें से? प्रमोटर. पॉसिबिलिटी नंबर 1. पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या मैं बोलती हूँ कि मेरे ही 200 शेयर्स में से I will let us say issue 100 shares. Just as an example, I am ready to issue 100 shares. And बदले में और पैसा रेज करेंगे. पॉसिबिलिटी नंबर 1. पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकती है? बोलो फटाफट. जो अनइशूड कैपिटल है, कितना अनइशूड कैपिटल दिख रहा है आपको? 700 का अनइशूड है ना. ऑथोराइज कितना है? 1000 है. इशूड कितना है? 300. हाउ मच मोर शेयर्स कैन बी इशूड? 700 शेयर्स और भी दिए जा सकते हैं. सो पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज दैट 700 शेयर्स जो अनइशूड है वो इशू करवा लेते हैं. डिफरेंस क्लियर है? केस नंबर 1 में क्या हुआ? हु इज इशूइंग द शेयर्स? आई मीन किसके हिस्से से शेयर्स इशू किए जा रहे हैं? प्रमोटर खुद अपने शेयर बेच के पैसा उठा रहा है. पॉसिबिलिटी नंबर 2. पॉसिबिलिटी नंबर 2, अनइशूड शेयर्स जो है वो पैदा करके अनइशूड को इशू किया एंड देन वी आर रेजिंग मनी. ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि केस नंबर 1 जो होता है, ध्यान से, केस नंबर 1 जो होता है, वेयर प्रमोटर सेल्स हिज स्टेक and raises funds, that is known as OFS. OFS, offer for sale. लिखवाऊंगी, पहले समझ लो. That is known as offer for sale. ठीक है. And whenever only IPO term is used, IPO मतलब क्या हो रहा है? Fresh shares, unissued shares जो है, fresh shares issue किए जा रहे हैं to people like you and me. एकदम क्लियर है कंसेप्ट दोनों में. अदरवाइज बहुत बार होता है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगा, दिस इज एन OFS. लोगों को लगता है कुछ तो अलग हो रहा है. कुछ अलग नहीं हो रहा है. ओनली हु इज इशूइंग शेयर्स, उसमें सिर्फ फर्क आ रहा है. पक्का क्लियर है? यस. सो लेट अस राइट डाउन दीज 2 पॉइंट्स, आईपीओ एंड OFS. सबसे पहले लिखते हैं आईपीओ. आईपीओ हमने ऑलरेडी लिखा है कि नहीं लिखा है? अपने टर्मिनोलॉजीज में लिखा है, डिटेल में नहीं लिखा है. ओके ठीक है. बट देन व्हाट वी कैन डू इज आईपीओ वर्सेस OFS. ऐसे करते हैं, आईपीओ वर्सेस OFS.
dash. In an IPO, fresh shares are issued. In an IPO, fresh shares are issued out of what? Tell me. Out of promoters holding or out of unissued capital? Out of unissued capital. While in OFS, comma, क्या होता है बोलो OFS में? Shares are issued out of promoters holding. Shares are issued out of promoters holding. ठीक है, क्विकली एग्जांपल लिख लेते हैं. ऑथोराइज कैपिटल 1000, ऑथोराइज कैपिटल 1000, issued capital 300, 300 split into 2, promoters others. promoters का कितना है? promoter का है 200, others 100. उधर ही नीचे क्या लिखेंगे? शेयर्स इशूड आउट ऑफ प्रमोटर्स स्टेक इनटू ब्रैकेट 200. शेयर्स इशूड आउट ऑफ प्रमोटर्स स्टेक इनटू ब्रैकेट 200 डैश. क्या हो गया ये? OFS. शेयर्स इशूड आउट ऑफ प्रमोटर्स स्टेक डैश 300, दैट इज OFS. एंड सेकेंड क्या लिखेंगे आप? शेयर्स इशूड आउट ऑफ अनइशूड कैपिटल. शेयर्स इशूड आउट ऑफ अनइशूड कैपिटल इनटू ब्रैकेट क्या आएगा? 700. ये क्या आ गया आपका? IPO. एकदम ओके. एक और टर्म मैंने अभी आपको बोला था, व्हाट वाज दैट? IPO के बजाय क्या था ये? FPO. व्हाट वाज FPO? When a company does a second or further round of funding. So ये एक वन लाइनर लिख लेंगे सिर्फ FPO. अच्छा, क्विकली टेल मी, ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है या लिस्ट होनी है अभी? ऑलरेडी लिस्टेड है. ओके, सो when a listed company comes up with a fresh funding offer, it is known as क्या? FPO का फुल फॉर्म आइदर फॉलो ऑन या फिर फर्दर. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर. इसको एक बार तो अपना मोबाइल बजाना ही होता है रोज. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर. यहां तक ओके? यस. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द मोस्ट अमेजिंग कंसेप्ट कि ये IPO कैसे आता है. फर्स्ट इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ IPO, देन वी विल कम टू हाउ डू वी अप्लाई फॉर IPO. पहले मैं कंपनी का एंगल बता रही हूं आपको. ओके, इफ यू रिमेंबर अगेन फर्स्ट और सेकंड डे, उसी का एक सिमिलर एग्जांपल ले रही हूं. एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. अब ये क्या बन गए? सॉरी, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी अभी बन गई थी ना अपनी लिमिटेड. थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे कि एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी लिमिटेड अभी तक हो गई है, लिमिटेड हो गई है. इसका करंट फेस वैल्यू इज 10 रुपीज. लेकिन ये कंपनी कितने सालों से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है? अज्यूम दिस कंपनी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिंस पास्ट 6 years. इट्स अ 6 years ओल्ड कंपनी ऑलरेडी. बहुत लोगों की गलतफहमी क्या होती है पता है? कि IPO में जब कंपनी आती है वो अभी स्टार्ट हो गई एंड डायरेक्ट IPO के लिए आ गई. दैट इज नॉट सो. देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ऑफ सेबी जो बोलते हैं कि 3 साल के आपको बैलेंस शीट, 5 साल का आपका P&L, ऐसे कई सारे उनके रेगुलेशंस होते हैं. अदरवाइज व्हाट कुड हैपन? अंडरस्टैंड,
इसमें कितनी चीटिंग हो सकती है. एनी पर्सन विल फ्लोट अ कंपनी. कंपनी फ्लोट करने के लिए कितना लगता है? 2,000-3,000 रुपए में आराम से कंपनी बन सकती है. कंपनी फ्लोट करो, फंडिंग उठाओ, मजे करो, कंपनी बंद करो, सिंपल. ओके, ये ना हो इसके लिए सेबी हैज वेरी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स एज टू हु कैन कम अप विद एन आईपीओ. आपको आपके पास्ट बैलेंस शीट्स, पास्ट P&Ls दिखाने पड़ते हैं सेबी को. वो पूरा डेटा देख के फिर वो अप्रूव करते हैं कि आपकी लायकी है कि नहीं है फंडिंग उठाने की, एंड देन दे विल अप्रूव इट. ओके, सो पहले क्या हो गया देखो, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी लिमिटेड 6 ईयर से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, डूइंग गुड. ओके, अब इसकी बुक वैल्यू आप समझते हैं इसका डिफरेंस. फेस वैल्यू एक होती है, बुक वैल्यू एक होती है. थोड़ा सा आज फाइनेंस आ रहा है. फेस वैल्यू का मीनिंग क्या था? वैल्यू रिटन ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, दैट इज अ फेस वैल्यू. सिंपल है. बुक वैल्यू क्या होता है? वैल्यू एज पर द बुक्स. कहां से आती है ये? सेम एज फेस वैल्यू. तो बुक वैल्यू अलग क्यों बोलते हैं ऐसे टाइम पास के, मतलब सिनोनिम है. वी हैव CA फाइनल स्टूडेंट्स इन द क्लास. बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू इज एज गुड एज आपका जो नेट एसेट्स जो होता है. या फिर नेट एसेट्स के बजाय बेस्ट वर्ड इज नेट वर्थ. नेटवर्थ तो सुना है ना सबने. हाउ डू वी कैलकुलेट नेटवर्थ? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जीरो. एसेट माइनस लायबिलिटी, जीरो. क्या बोलते हैं? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, नॉट ओनली करंट लायबिलिटीज, इट कुड बी नॉन करंट लायबिलिटीज ऑल्सो. एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? अब जो CA वगैरह नहीं कर रहे या फिर फाउंडेशन लेवल पे है तो आपको T फॉर्मेट तो सबको पता है बैलेंस शीट का. ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन होता है. लायबिलिटीज, एसेट्स. यहाँ पे आपके सभी एसेट्स आएंगे. फिक्स्ड एसेट्स आएंगे जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डाटा, सब कुछ हो गया. यहाँ पे आपके करंट एसेट्स आएंगे जैसे कैश, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सब कुछ आ गया. यहाँ पे आपका एसेट साइड का टोटल आ गया. लेटेस्ट एसेट साइड का टोटल इज 1,000 रुपीज. यहां तक ओके. अब ये 1,000 रुपीज के एसेट्स जो आपने लाए ना, वो कहां से लाए आपने? इधर अपने ओन फंड से लाए या फिर लोन फंड से लाए. सो इसमें से पॉसिबिलिटी ऐसी है, देखो शेयर होल्डर्स के पैसे इसमें 200 रुपीज है. आपके रिजर्व्स जो है, रिजर्व समझते हैं एवरीवन, रिजर्व्स इज लाइक पास्ट ईयर प्रॉफिट्स. ओके, पिछले अभी अपनी 6 ईयर्स की कंपनी है ना, तो पिछले 5 साल में जितना भी प्रॉफिट्स हमने कमाया है वो सब इधर आ गया रिजर्व्स में. रिजर्व्स मान के चलो है 300 रुपीज. ओके, लोन्स जो है अपने लोन्स फ्रॉम बैंक्स और वट एवर लोन्स जो है वो है लेटेस्ट से अपने 200 रुपीज. ओके, एंड अपने जो करंट लायबिलिटीज है ऑल दीज आर पुट टुगेदर 300 रुपीज. यहां तक ओके. लायबिलिटी साइड टोटल कितना आया? अरे क्या कर रहे हो? 1,000 रुपीज. ओके, अब ध्यान से सुनो. फेस वैल्यू कितना था अपना? 10 रुपीज था. ऐसे कितने शेयर्स इशूड थे अपने? जस्ट एज एन एग्जांपल, वी हैड 25 इशूड शेयर्स. ओके, 25 अच्छा नहीं लग रहा है, 20, क्योंकि शेयर कैपिटल 200 है ना. तो फेस वैल्यू कितना है बोलो? 10 फेस वैल्यू है ना. 10 फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 200 है. आ गया ना टोटल अपना 200. 20 into 100, योर शेयर कैपिटल इज 200. इतना बेसिक समझ में आता है ना? पक्का? यस. ओके, वेरी गुड. अब फेस वैल्यू कितना है बोलो फटाफट एक बार फिर से? 10. अब बुक वैल्यू निकालने जा रहे हैं. इसकी बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एसेट्स कितने फटाफट? 1000. एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है? 500. बचे कितने? 500. दैट इज नथिंग बट योर नेटवर्थ डिवाइडेड बाय हाउ मच? नंबर ऑफ शेयर्स. मतलब कितना हो गया? 20. कितना आ गया आपका? 25 इज योर बुक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं उसको कभी कभी. हाँ, अब याद आया. बुक वैल्यू सेम एज फेस वैल्यू. ऐसा नहीं होता है.
ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? भले ही आप कॉमर्स में एकदम भारी नहीं है, भले ही फाउंडेशन लेवल पे है, बट दैट इज ओके, आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए. एसेट साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है. एसेट साइड का टोटल लिया है, माइनस क्या किया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज किया. दैट इज नथिंग बट योर नेट वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. आगे आपका बुक वैल्यू. यहां तक ओके? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आज एक्सपर्ट एकेडमी के प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि आज अगर हम ये कंपनी बेचने के लिए जाते हैं तो वी शुड नॉट गेट मनी एज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू. नहीं, हम फेस वैल्यू से नहीं लेंगे पैसे. क्यों? हमारी आज नेटवर्थ जो है ना, वो 10 रुपए के 10 रुपीज पर शेयर वाली नहीं है. हमारी नेटवर्थ 25 रुपीज पर शेयर जितनी बन चुकी है ऑलरेडी. हमने उतना बिल्डअप किया, हमने उतने एसेट्स बिल्डअप किया, हमने उतने रिजर्व्स बिल्डअप किए. ओके, बात यहां तक समझ में आ रही है? व्हाट हैपेंस, अंडरस्टैंड? हम सब प्रमोटर्स थे एक्सपर्ट एकेडमी के. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सम पीपल ऑफ अस माइट फील कि इतना जो जंप लिया ना ऑलरेडी फ्रॉम 10 to 25, इसके आगे जाने के चांसेस नहीं है इस बिजनेस को. बिजनेस इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है. ओके, इसीलिए आप में से कोई प्रमोटर्स चाहते हैं दैट वी वांट टू सेल ऑफ आवर शेयर्स एंड वी वांट टू क्विट एक्सपर्ट. पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? यस, आप में से कोई लोगों को ये 2-4 इधर आपको लग रहा है कि वी शुड सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ एक्सपर्ट एंड क्विट एक्सपर्ट. क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पॉसिबल होता है क्या? सेल ऑफ करो किसी को भी. कौन लेगा आपसे? कोई नहीं जानता एक्सपर्ट को. कौन लेगा आपसे ये शेयर्स? सो इसीलिए टू हैव गुड लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी क्या सोच सकती है? लेट अस गो इन फॉर एन आईपीओ. अच्छा, आईपीओ में जाने के बाद अगर आपको आपके शेयर्स बेचने हैं तो आप किसको बेचेंगे? पब्लिक को. तो ये थोड़ा सा ओएफएस टाइप भी जा सकता है देन इंस्टेड ऑफ आईपीओ, बिकॉज आप प्रमोटर्स, आप सेल कर रहे हो अपने स्टेक को, तो वो वाला पार्ट ओएफएस टाइप जाएगा. अगर किसी को भी नहीं बेचना है शेयर्स, फिलहाल नहीं बेचना है, तो अनइश्यूड कैपिटल से बेच के आईपीओ आ सकता है. लॉजिकली टेल मी, आईपीओ में एक नया टर्म और आ जाता है, दिस इज नोन एज इश्यू प्राइस. ठीक है, इश्यू प्राइस. इश्यू प्राइस मतलब पर शेयर आप कितने में ऑफर करना चाह रहे हो. हु कैन टेल मी? 10 रुपए में ऑफर करेंगे हम सब प्रमोटर्स हैं, हमारी मीटिंग चल रही है, हम सब 10 रुपए में ऑफर का फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही है ना. कम से कम कितना चाहिए अपने को? कम से कम 25 चाहिए यार. अपना नेटवर्थ ही 25 रुपए का है. कौन 25 के नीचे बेचेगा? हम पागल थोड़ी ना. मिनिमम शुड बी 25, बट ये दिल मांगे मोर. अपने को पता है अपना नेटवर्थ 25 है. दिस इज द करंट वैल्यू. जो इन्वेस्टर्स अपने कंपनी में आ रहे हैं उनको हमको ये कन्विंस करना है, थोड़ा मार्केटिंग करना है ना. मार्केटिंग क्या करना है? देखो 6 साल पहले 10 था, आज 25 है. इन 6 years वी हैव ग्रोन 2.5 times. तो आप अगर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आर यू इन्वेस्टिंग ओनली फॉर 1 day 2 day और विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो देखो शेयर होल्डर्स, नए शेयर होल्डर्स, उनको कन्विंस करना है कि 25 रुपए की वर्थ नहीं है वैसे, ये इससे कई ज्यादा वर्थ है हमारी कंपनी का. ओके, इसके लिए लेट मी गो जस्ट 1 step डीपर इनटू अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव. जो लोग सीए कर रहे हैं उनको तो 1 सेकंड में समझ में आएगा कि ये जितने भी एसेट्स हमने बुक किए ना, मशीनरी बुक किया, लैंड बुक किया. आई गिव अ सिंपल एग्जांपल ऑफ लैंड. हमने मान के चलो लैंड एक्वायर किया था या फिर बिल्डिंग हमारे पास थी, क्लासरूम्स हमारे पास थे. क्लासरूम कब परचेज किए? 6 साल पहले. ये जो वैल्यू इधर दिख रही है, ये कौन सी वैल्यू है? 6 साल पहले की वैल्यू है. नाउ यू ओनली टेल मी, 6 साल पहले का बिल्ड इस क्लासरूम का वैल्यू एंड आज का इस क्लासरूम का वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा है, अलग है. लैंड वी ऑलवेज लर्न इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट. लैंड की वैल्यू बढ़ती जाती है. अपना क्लास प्रीमियम एरिया में आता है पुणे में. तो प्रीमियम एरियाज में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की प्राइस जनरली अप्रिशिएट होगी. तो हम फ्यूचर शेयर होल्डर्स को क्या कन्विंस कर रहे हैं? 25 रुपए की जो वैल्यू है ना, ये करंट वैल्यू वाली नहीं है, ये तो 6 साल पुराने वाले वैल्यूएशन का है. फिर भी देखा जाएगा तो इसी को हम अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन बोलते हैं. हाँ, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तब तो कुछ समझ में ही नहीं आया था उसका मीनिंग क्या रहता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है. आज सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन मतलब क्या? जिस प्राइस पे आपने बाय किया था उस प्राइस पे रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. बट क्या आज उस बिल्डिंग का, क्या आज उस लैंड का इतना ही वैल्यू है या डेफिनेटली बढ़ गया होगा? डेफिनेटली बढ़ गया होगा.
सो अब हम क्या कन्विंस कर रहे हैं न्यू शेयर होल्डर्स को, ये दिखने में तो 25 दिख रहा है बुक वैल्यू, बट डेफिनेटली इससे ज्यादा है. सो वी प्रमोटर्स वी वुड लाइक टू टेक अ मीटिंग लेंगे एंड हम डिसाइड करेंगे कि क्यों ना कोई वैल्यूअर को अपॉइंट करें. वैल्यूअर समझते, द वर्ड इटसेल्फ सेज कोई वैल्यूअर होगा जो क्या करेगा. वैल्यूअर अपने बिजनेस का करंट वैल्यूएशन निकालेगा, नॉट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन मेथड, बट आज के वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन निकालेगा. एंड देन जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर उसका वैल्यूएशन निकल के आता है 75 रुपीज, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट आस्क मी कहां से आया 75. उसने अपने कंपनी का वैल्यूएशन किया एंड वो बोला आज के हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आइडियली 75 रुपीज आनी चाहिए. अच्छा, उसको पता है 75, अपने को लग रहा है 75, बट पीपल शुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट एट 75 ना. कौन पीपल? जो न्यू शेयर होल्डर्स है, पब्लिक जो है, इवन इट कुड बी न्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अच्छा, वो क्या सोचेंगे, फेस वैल्यू कितनी आपकी 10, कितने में बेच रहे हो 75, पागल हो क्या. यू आर इशूइंग एट अ प्रीमियम ऑफ हाउ मच रुपीज, 65 रुपीज प्रीमियम पे बेच रहे हो यार आप. आई होप समझ में आ रहा है. 65 रुपीज प्रीमियम कहां से आया, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, यू आर इशूइंग एट 75, आप 65 का प्रीमियम क्लेम कर रहे हो यार. सो अब इसके लिए क्या होता है, देखो, आइडियली व्हाट शुड हैपन इज वी शुड गो टू डिफरेंट पीपल. न्यू इन्वेस्टर जो रहेंगे उनके पास हम सब ने जाना चाहिए एंड सबको एक एक अपने कंपनी का प्रेजेंटेशन देना चाहिए. दैट इज हाउ मार्केटिंग इज डन ना. दैट इज एक्चुअली हाउ आईपीओ का मार्केटिंग होता है. अब ध्यान से सुनो क्या होता है. हम सब 50 लोग हैं, प्रमोटर्स है, बराबर. अब हम सब ने क्या डिसाइड किया है, सब ने मिलके अलग अलग लोगों के पास जाके अपना प्रेजेंटेशन देके आना है कि हमारी कंपनी कितनी भारी है, आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो. अब डू यू रियली थिंक हम सब ये काम करने वाले हैं? हम सब अलग अलग जगह पे जाके नॉक अपॉइंटमेंट चाहिए सर, क्यों, वो प्रेजेंटेशन देना है, हमारी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है. डू यू थिंक दिस विल हैपन? डोर टू डोर सेलिंग नहीं चल रहा ना अपना. सो व्हाट हैपन्स, अंडरस्टैंड, are we going to give presentation to individual investors or we would like to give presentations to institutional investors? Like, क्या मैं अलग अलग बैंक्स में जाके ये प्रेजेंटेशन देके आ सकती हूँ क्या? क्या मैं अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज में जाके ये प्रेजेंटेशन देके आ सकती हूँ? क्या मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास जाके ये प्रेजेंटेशन देके आ सकती हूँ? दीज आर गोइंग टू बी बिग इन्वेस्टर्स. अगेन, हम 50 लोग अपना रोज का काम छोड़ के ये सब करेंगे क्या? नहीं करेंगे. सो दैट इज वाई वी वॉन्ट सम पर्सन हु विल हेल्प अस आउट इन दिस एंटायर आईपीओ का प्रोसेस. अंडरराइटर तो बहुत बाद में आ गया, क्योंकि अंडरराइटर का काम क्या होता है, अगर शेयर्स आपके कम सब्सक्राइब हो गए तो वो ले लेगा बैलेंस पार्ट. दैट इज अंडरराइटर, बहुत बाद में आ गया. ये बंदा जो होगा हु विल रिस्पॉन्सिबली डू ऑल दीज प्रेजेंटेशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नर्व ऑफ द मार्केट. अंडरस्टैंडिंग द नर्व ऑफ द मार्केट मतलब क्या, इनके पास मान के चलिए 10 बैंक्स को अप्रोच करता है, 20 इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता है, 15 म्यूचुअल फंड्स के पास जाता है, प्रेजेंटेशन देता है एंड ही राइट्स इट डाउन. अच्छा, ये जो बैंक है ना, बैंक नंबर 1 है ना, दे आर रेडी टू बाय द शेयर्स, दे आर रेडी टू बाय आवर शेयर्स एट 70. मैं 75 के लिए कन्विंस कर रहा था, बट दे आर रेडी टू टेक इट एट 70. बैंक नंबर 2 बोल रही है वी आर रेडी टू टेक इट एट 72. बैंक नंबर 3 बोल रही है 75 तुम पागल हो क्या, अरे इतना अमेजिंग है, मैं तो हम तो 80 देंगे, हमको ही दे दो, लेकिन हमको पक्का चाहिए शेयर्स, वी आर रेडी टू गिव एट 80. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये जो बंदा होता है ना, व्हाट ही डज इज ही स्टार्ट्स राइटिंग दिस डाउन. अभी थोड़ा सा आपको विजुअलाइज होने के लिए मैं बता रही हूँ. उसके पास एक बुक है, ऐसे आप समझ लो, एंड बुक में वो लिखते जाता है कि अच्छा ये लोग इतने के लिए रेडी है, ये लोग इतने के लिए रेडी है. Okay, so he's building a book. Book building, ऐसे कुछ सुना आपने? Book building issue सुना है कभी ये वर्ड? नहीं? In India currently, I can say roughly 95% of the IPOs are book building issues. 95% of IPOs will be book building issues. Okay, पहले क्या होता है कंसेप्ट समझ लो. बुक लिख रहा है मतलब ये बुक बिल्ड कर रहा है ना. व्हाट इज ही बिल्डिंग? ही इज बिल्डिंग द प्रोबेबल प्राइसेस. ही इज बिल्डिंग द प्रोबेबल प्राइसेस. कौन बता रहा है उसको ये प्राइस 70, 70 to 80? कौन बता रहा है? नए इन्वेस्टर्स बता रहे हैं. कौन थे अपने नए इन्वेस्टर्स? बैंकर्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड. वो बोल रहे हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन सुन लिया एंड फिर वो बोल रहे अच्छा वी फील 70
अगर आप इशू करोगे शेयर्स वी आर रेडी टू टेक एट 70, अगर आप इशू करोगे शेयर्स वी आर रेडी टू टेक एट 72, वी आर रेडी टू टेक एट 80. यहां तक ओके? अभी तक सवाल आंसर ही नहीं हुआ है कि ये बंदा कौन है जो पागल जैसे इधर प्रेजेंटेशन दे रहा है. नाउ इफ यू हर्ड अबाउट दिस थिंग, बंदा मतलब देयर विल बी नॉट ओनली वन इंडिविजुअल हु इज डूइंग दिस. डू यू थिंक एक ही इंडिविजुअल सब जगह पे भागने वाला है? इट्स गोइंग टू बी एन इंस्टीट्यूशन, एंड ये इंस्टीट्यूशन है आपकी मार्केट रिव्यूअर, डेवलपर. एनीवन? ओह, सेबी क्यों मेरे लिए भागेगा? मर्चेंट बैंकर नाम सुना है क्या कभी? नाम सिर्फ सुना है. एंड टेलिंग यू, सीए फाइनल होने के बाद भी आधे बच्चों को मर्चेंट बैंकर पूछो वो बता ही नहीं पाएंगे. अगेन फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता था मर्चेंट बैंकर एग्जैक्टली क्या करता है. ये सिलेबस में तो आता है, बट हम क्या करते हैं सिलेबस के लिए उतना रट लेते हैं, बात खत्म. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये मर्चेंट बैंकर बहुत जबरदस्त चीज होती है. कैन आई ओपन माई बैंक अकाउंट? एक काम करते हैं, अपना एक बैंक अकाउंट ही खोल लेते हैं मर्चेंट बैंकर के पास, सेविंग बैंक अकाउंट. मतलब मुझे समझ में आएगा कि मर्चेंट बैंक क्या करता है. वी आर नॉट इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू अ मर्चेंट बैंकर टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट. ये सेविंग बैंक जैसे चिल्लर काम नहीं करता है ये मर्चेंट बैंकर. मर्चेंट बैंकर सिर्फ बड़े बड़े काम करता है, लाइक व्हाट? मर्जर्स, एक्विजिशंस. ओके, मर्चेंट बैंकर और क्या काम करता है? किसी को फंडिंग उठानी है, प्राइवेट इक्विटी रेज करके देगा. किसी को फंडिंग उठानी, किसी को आईपीओ लेके आना है, ये आईपीओ की पूरी प्रोसेस में रेज उसको हेल्प करेगा. सो मर्चेंट बैंकर मतलब नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस नहीं करता है, ये हाई लेवल बैंकिंग फंक्शंस करता है, लाइक मेजरली फंडिंग उठा के देना. ओके, फंडिंग एंड मर्जर्स एक्विजिशन, ये दो सबसे मेजर काम होते हैं मर्चेंट बैंकर के. यहां तक ओके? पक्का? सो ये मेरे लिए भागदौड़ी कौन कर रहा है? मेरे लिए भागदौड़ी कौन कर रहा है? मर्चेंट बैंकर कर रहे हैं सब. यहां तक भी ओके? सो मर्चेंट बैंकर ने अलग अलग लोगों को जाके प्रेजेंटेशन दे दिया. इंडिविजुअल को प्रेजेंटेशन दिया या सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया? सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया. एंड फिर वो बोला कि वो अब हम सबको आके प्रेजेंटेशन दे रहा है. कौन? मर्चेंट बैंकर. ये बोल रहा है कि मैं इन सबको विजिट करके आया, एंड ऑन एन एवरेज पीपल आर रेडी टू पे समवेयर बिटवीन 70 to 80 फॉर आवर कंपनी शेयर. ओके, वो क्या बोल रहा है? समवेयर बिटवीन 70 to 80. अब वो बोल रहा है अब आपका चॉइस है, आपको क्या करना है. आपको 70 पे लाना है, 71, 72 या 80, वॉट एवर योर चॉइस. अब हम क्या करते हैं, ये बुक बिल्डिंग इशू जो होता है ना, ये मैंने आपको सिर्फ टर्म इंट्रोड्यूस किया था. एक्चुअली इसके बाद चालू होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस. मतलब क्या होता है? नाउ अंडरस्टैंड. अभी तक ये 70 to 80 जो रेंज दिया, वो किसने दिया हमको रेंज? मर्चेंट बैंकर ने दिया. उसने मन से लाया क्या ये देने के पीछे किन सब का हाथ था? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का था मेजरली. ओके, बट अब क्या होता है? नाउ आई से कि लेट मी कम अप विथ एन आईपीओ एंड लेट मी आस्क द एक्चुअल इन्वेस्टर्स. अच्छा, ये एक्चुअल इन्वेस्टर्स है, ये वुड बी इन्वेस्टर्स है? वुड बी जो सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ हम शायद इन्वेस्ट कर सकते. ओके, अब मैं क्या करती हूँ? अब मैं बोलती हूँ आई विल एक्चुअली कम अप विथ एन आईपीओ नाउ. जब मैं आईपीओ लेके आऊंगी तब मैं पीपल लाइक इंडिविजुअल्स, पीपल लाइक इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको जब मैं एक्चुअल ऑफर कर रही हूँ आईपीओ में, तब मैं इनको बोलती हूँ आपको मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बिंदास करो. सब पूछ रहे कितना भाव है, कितने में इन्वेस्ट करने को मिलेगा. मैं बोलती हूँ यू डिसाइड माई वर्थ रादर देन मी टेलिंग यू माई वर्थ. मतलब आई टेल देम दैट न्यू टर्म आ रही है, माई प्राइस बैंड इज ₹70 to 80. आप चूज करो आपको इसमें से कौन सा अमाउंट अच्छा लगता है. ओके, बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है ये. whenever you want to invest for any IPO, I'm again repeating, 95% of the IPOs will be book building IPOs जिसमें प्राइस बैंड कॉन्सेप्ट आता है. प्राइस बैंड कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा? डज द प्रमोटर टेल यू हमारे कंपनी का ये शेयर का प्राइस है, आपको इन्वेस्ट करना है करो, नहीं तो बाय बाय. या फिर प्रमोटर बोलता है आप भी हमारे ओनर हो, आप डिसाइड करो आपको क्या लगता है हमारा वर्थ. बीइंग सो हम्बल. सो फटाफट बोलो कौन सा वाला प्राइस रहेगा? 75 डायरेक्टली या फिर 70 to 80? कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं. 70 to 80 हम सब डिसाइड करेंगे. हम सब बोले तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स, पब्लिक, including institutional investors also, they will decide at what price they want to bid for our shares.
ओके अब क्या होगा, थोड़ा सा वापस से फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये क्योंकि ये 70 to 80 प्राइस बैंड है, ये मैंने उनको कैसे बताया, हमने पब्लिक को कैसे बताया, बुक बिल्डिंग इशू है ये भी है, ठीक है, बट मैंने कैसे बताया सबको कि हमारा बुक बिल्डिंग इशू आ रहा है? हाँ, वेबसाइट से बताया और अनाउंसमेंट किया, ओरल अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन, कौन सा टर्म है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? दैट्स अ डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ लिखा रहेगा। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसे रहे, पास्ट में मैंने जो बोला था ना शायद आपको, पास्ट 5 साल का बैलेंस शीट, P&L, ये सभी उसमें दिया रहेगा। कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है क्या, लिटिगेशन समझते हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है क्या, कंपनी इन पैसों का क्या करेगी? सो प्लीज इफ वी आर रेजिंग मनी फॉर एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी लिमिटेड, क्या करेंगे हम इस पैसे का? शुड देयर बी सम रीजन गिवन और नॉट? रीजन कुड बी समथिंग लाइक दिस, दैट वी वांट टू एक्सपांड क्लासरूम्स ऑल ओवर इंडिया, कुछ ऐसा अगर है, ऑल ओवर इंडिया अगर क्लासरूम हमको निकालने हैं तो वी विल नीड मनी। सो क्या पर्पस ऑफ आईपीओ ये भी बताना पड़ेगा, यस और नो? एब्सोल्युटली यस। कहां पे बताते हैं? इन द प्रोस्पेक्टस। यहां तक ओके, पक्का? सो प्रोस्पेक्टस मैंने डायरेक्टली पब्लिक को दे दिया या पहले किसी से ये कंफर्म कराना पड़ेगा कि अच्छा ये प्रोस्पेक्टस है, इस पे कुछ खराबी तो नहीं है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, आप अलाउ कर रहे हो ना सर? किसकी परमिशन मांगू मैं? सेबी। परमिशन मतलब सेबी, फर्स्ट आई आस्क विद द परमिशन ऑफ सेबी। सेबी ये देखो हमारा प्रोस्पेक्टस है। अब प्रोस्पेक्टस में आपने वर्ड शायद सुना होगा, DRHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ऐसे प्रोस्पेक्टस का टाइप होता है, बट द मोमेंट आई एम सेइंग DRHP, इट्स अ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। थोड़ा फ्लैशबैक में गए ऑलरेडी, फ्लैशबैक में जाने के बाद क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले हम DRHP निकाल रहे हैं। अभी तक जनरल पब्लिक को बताया कि अभी तक जनरल पब्लिक को नहीं बताया, फ्लैशबैक में गए, जनरल पब्लिक को अभी तक पता नहीं है। आई फर्स्ट अप्रोच सेबी एंड मैं बोलते देखो ये हमारा DRHP है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसने सब कुछ डिटेल्स लिखे है। फिर सेबी सब चेक करेगा एंड बोलता है ठीक है, अग्रीड या फिर नॉट अग्रीड। नॉट अग्रीड तो इशू इधर ही खत्म हो जाएगा, वील हैव टू वेट। अगर वो अग्री करते हैं तो विल गो अहेड एंड विल ड्राफ्ट आवर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सो स्टेप नंबर 1 विल बी DRHP, अगर उन्होंने फाइनलाइज हो गया तो स्टेप नंबर 2 विल बी RHP। RHP क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है? सिंपल है, ऑफर डॉक्यूमेंट है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, आपको अगर कुछ भी परचेस करना है, आप Amazon पे जाओ, कुछ भी परचेस करना है, वहां पे डायरेक्टली होता है ऐड टू कार्ट या फिर व्यू डिटेल्स। Amazon ऐड टू कार्ट या फिर व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट के पूरे स्पेसिफिकेशंस आएंगे ना, कि ऐसा है वैसा है, इतना कैपेसिटी है, ये है वो है। प्रोस्पेक्टस क्या है? ऐड टू कार्ट है या प्रोस्पेक्टस इज व्यू डिटेल्स? फर्स्ट व्यू डिटेल्स है, पहले पढ़ो कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस क्या है, कितना कितना एक्सपेंशन है उनका, ये सभी हम RHP में पहले पढ़ सकते हैं। यहां तक भी ओके क्या? ओके, बट वेट, RHP में तो क्या क्या डिटेल्स आएंगे ये मैंने बताया, बट और एक दो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स RHP में जो आते हैं, दैट इज ये पूरी इशू हैंडल करने के लिए क्या हमको एक बैंकर की जरूरत होगी क्या? बैंकर की जरूरत क्यों होगी बोलो? पीपल, जनरल पीपल लाइक यू एंड मी, इफ वी वर टू इन्वेस्ट इन दिस IPO, हमको पैसा तो जमा करना पड़ेगा ना। किधर पैसा जमा करेंगे? बैंक में पैसा जमा करेंगे। सो कोई एक बैंकर होगा, कोई एक कस्टोडियन होता है, कोई एक RTA होता है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है, बहुत सारे नाम आएंगे, 1 बाय 1 जाना है अपने को। ये सभी नाम किधर दिए रहते हैं? इन द प्रोस्पेक्टस। कहने से 30% क्लैरिटी है, 30%। जैसे हम एक वापस से जाएंगे, स्टार्ट से जाना है वापस से, एक कॉन्सेप्ट करते करते। ओके, फर्स्ट आई फील लेट अस राइट डाउन 2-3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमने यहाँ पे किया है। 2-3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में फेस वैल्यू तो हमने ऑलरेडी लिखा था, बुक वैल्यू टर्मिनोलॉजी नहीं लिखा हमने। सो राइट डाउन क्विकली, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का सिंपल मीनिंग क्या बोला मैंने? नेटवर्थ। बुक वैल्यू इज योर नेटवर्थ। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट दैट?
एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ओके, दैट इज बुक वैल्यू. उसके बाद मैंने आपको बोला मर्चेंट बैंकर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मर्चेंट बैंकर क्या करता है? मर्चेंट बैंकर हेल्प्स इन द एंटायर आईपीओ प्रोसेस. helps in the entire IPO process. And he is almost like a single point of contact. कुछ भी हो जाता है मर्चेंट बैंकर कंपनी के एंगल से, कंपनी के एंगल से, नॉट फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंगल. लाइक अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. नहीं लिखा तो भी चलेगा. मर्चेंट बैंकर मेनली दो काम कौन से करता है? टू मेजर थिंग्स विच अ मर्चेंट बैंकर डज: mergers and acquisitions, and second one is funding. ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, नथिंग टू डू विथ एन आईपीओ. सो मर्चेंट बैंकर जनरली परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस. Number 1, mergers and acquisitions, and number 2, fundraising. यहाँ तक ओके? यस. उसके बाद बुक बिल्डिंग इशू. बुक बिल्डिंग इशू फटाफट बोलो. बुक बिल्डिंग इशू मतलब क्या होता है? इज अ प्राइस बैंड गिवन और इज अ फिक्स प्राइस गिवन? प्राइस बैंड इज गिवन टू द इन्वेस्टर्स. To apply for shares. To apply for shares. Next term कौन सा है? Prospectus. Prospectus. Prospectus में क्या बोला मैंने? Can I say it's an offer document. Offer document wherein all details of the company, all major details लिखो, all major details of the company will be mentioned. अभी तक बेसिक चीजें क्लियर है? वी आर गोइंग टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस वन मोर टाइम. बट एक थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट्स क्यों चाहिए अपने को? व्हाई प्राइमरी मार्केट्स, व्हाई आईपीओस? इसके लिए जस्ट एक दो तीन बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं. प्राइमरी मार्केट्स अगर किया तो इससे मेजर फायदा क्या होता है? यू आर एबल टू टैप लार्जर मार्केट्स. हमने ऑलरेडी किया है बट आपको सिर्फ गो थ्रू करा रही हूँ. हाउ कैन वी टैप लार्जर मार्केट्स थ्रू प्राइमरी मार्केट? टेल मी. मैंने अच्छा ये तो जीडीआर वगैरह ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया. अगर आपको इतना ग्लोबल लेवल पे नहीं जाना है, सिर्फ इंडिया लेवल पे ही रुकना है अगर आपको, तो भी कैन आई से बिकॉज ऑफ आईपीओ आई कैन टैप अ लार्जर मार्केट. कैसे बोलो? फिलहाल तो अपना 50 लोगों का था. आई डोंट नो पीपल सिटिंग इन केरला हु आर इंटरेस्टेड इन माई कंपनी. आई डोंट नो पीपल इन आसाम हु आर इंटरेस्टेड इन माई कंपनी. हाउ डिड आई रीच देम? थ्रू आईपीओ. That is a function of the primary market. I can tap a larger market. Okay, clear है? और एक पॉइंट क्या बोला है? Why IPO? It fosters competitive process. अब competitive process में आपको ये जो अपना प्राइस बैंड कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको जब आएगा तब मैं आपको ये competitive process क्या होता है ये आपको बताऊंगी. ओके, उसके बाद क्या होता है? देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओनरशिप होता है.
होता है कि नहीं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओनरशिप? आइदर हमने 700 भी इशू किए, कौन से 700 अनइशूड वाले, या फिर मेरे अपने जो प्रमोटर्स के थे उसमें से भी इशू किए, तो भी डाइवर्सिफाइड ओनरशिप हो जाएगा. मोर पीपल कमिंग इनटू द कंपनी, मोर थॉट प्रोसेस कंपनी में आ जाएगा, राइट? सो ओनरशिप भी डेफिनेटली डाइवर्सिफाई हो जाएगा. बेटर डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे. क्विक आंसर चाहिए. डिस्क्लोजर्स कहां पे दिए जाते हैं? इन द प्रोस्पेक्टस ना. मैंने आपको वही बोला था, कंपनी के बारे में एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड इन द प्रोस्पेक्टस. कभी देखा है प्रोस्पेक्टस आपने? नहीं. कितने पेजेस का होता है प्रोस्पेक्टस? एनी आइडिया? मोटा होता है. लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव वन प्रोस्पेक्टस विथ मी राइट नाउ और नॉट. शायद होना मुश्किल है, बट लेट मी जस्ट चेक. ठीक है, मैं बीच में चाहिए तो एक आपको डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस बताऊंगी. रफली 600-700 पेजेस का होता है ओनली. ओके, सो डू यू रियली फील ये सब हम पढ़ते बैठ सकते हैं? इम्पॉसिबल है. इतना पढ़ाई किया तो सीए हो जाएंगे. तो प्रोस्पेक्टस क्यों पढ़ते बैठना इतना? सो व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी चेक्ड इन द प्रोस्पेक्टस. इतना तो बेसिक चीजें देखो, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी. ओके, बट इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट एंड नाउ यू कैन टेल मी, अगर 600 पेजेस का प्रोस्पेक्टस होने वाला है, डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू हैव लोड्स ऑफ डिस्क्लोजर्स इनसाइड इट? एब्सोल्युटली यस. सो देखो, अच्छी बात है कि आप जितने ज्यादा डिस्क्लोजर्स दे रहे हो, पीपल विल आइडियली फील मोर कंफर्टेबल बिफोर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है अबाउट गिविंग फ्यूअर डिस्क्लोजर्स. अगर आपने कम डिस्क्लोजर्स दिए या फिर गलत डिस्क्लोजर्स दिए, सेबी कैन डायरेक्टली पेनलाइज यू. आपने डीएलएफ का नाम सुना है? क्या है डीएलएफ? डीएलएफ आईपीएल था नहीं क्या पहला अपना? क्रिकेट वाली कंपनी है, स्पॉन्सर करता है डीएलएफ आईपीएल को. दैट वाज द फर्स्ट स्पॉन्सरर ऑफ आईपीएल. डीएलएफ इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. कंस्ट्रक्शन कंपनी. इट केम आउट विथ इट्स आईपीओ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समवेयर अराउंड इन 2007-8. आपने देखा होगा तो मेरे कई सारे एग्जांपल्स इस एरिया के हैं, बिकॉज दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. जब अपन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो ढेर सारी गलती करती है. इतनी गलतियां की है, इतनी ज्यादा गलतियां की है शुरुआत में कि वो सभी अभी मुझे काम आते हैं एग्जांपल्स देने के लिए. ओके, सो दिस वाज द कंपनी व्हिच वाज कमिंग अप विद एन आईपीओ. अभी आपको आईपीओ कॉन्सेप्ट पता है सबको? एवरीवन वाज सेइंग, एवरीवन, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, ये बोल रहे थे कि ये इशू ना ओवर सब्सक्राइब होगा. ओवर सब्सक्राइब होगा. हमारा जो ओरिजिनल कंपनी था, लेट अस टेक कंपैरेटिव एग्जांपल. हमारे ओरिजिनल एग्जांपल में फटाफट बोलो, कंपनी कितने शेयर्स अनइशूड थे? 700 थे, याद है? हमने डिसाइड किया 700 में से ना लेट अस इशू 500 शेयर्स. आर यू विथ मी? कंपनी ने क्या डिसाइड किया? 500 शेयर्स इशू करेंगे. अब फटाफट बोलो, 500 के लिए मैंने ऑफर कितने किए? 500. एप्लीकेशंस कितने आए लोगों से? 3000 के एप्लीकेशंस आए. दिस शेयर इज ओवर सब्सक्राइब. 6 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड. यहां तक ओके? सो देयर वर स्ट्रॉन्ग रूमर्स इन द मार्केट दैट डेफिनेटली ये जो डीएलएफ का आईपीओ ना, ये ना ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, फॉर श्योर ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा. अब एट दैट टाइम, वे बैक इन 2007-8, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए लिमिट थी कि आप आईपीओ में ना मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक का इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आप एचएनआई कैटेगरी में आओगे. हाँ, हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, बट वहां पे लिमिट अलग पढ़ा था. हमने 2 लाख का लिमिट पड़ा था, वो आज का लिमिट है. दिस लिमिट इज रिवाइज्ड नाउ. ओरिजिनल लिमिट 2007-8 में कितने का लिमिट था? 1 लाख का लिमिट था. यहां तक ओके? स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये चल रहे थे, जैसे मैंने आपको 6 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन बोला, वैसे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स चल रहे थे कि डीएलएफ का आईपीओ है ना, वो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब पक्का होगा. इतना स्ट्रॉन्ग रूमर्स चल रहे थे, 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फंडा. 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा मतलब इन्वेस्टर को क्या इंपैक्ट होता है? मान के चलो, पर्सन लाइक मी, इफ आई पुट एन एप्लीकेशन कि मुझे ना डीएलएफ के शेयर्स चाहिए, मैंने एप्लीकेशन डाला. कितने के लिए एप्लीकेशन डाला मैंने? 1 लाख के लिए एप्लीकेशन डाला. तो मुझे कितने वर्थ के शेयर्स मिलने के चांसेस है? नहीं समझ में आ रहा है?
एक बार फिर से इशू प्राइस के बारे में बात नहीं चली। इशू के लिए उन्होंने कितना इशू किया है बोलो, कितना भी इशू करने दो। रूमर्स कितने हैं अभी? रूमर्स क्या है कि ये 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। ओके 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है तो क्या होता है बोलो, जितने के लिए भी शेयर्स मैंने अप्लाई किए उसका मुझे कितने मिलने के चांसेस है? 1/10 मिलने के चांसेस है। जस्ट एज एन एग्जांपल, कंपनी कम्स अप विद एन आईपीओ ऑफ 500 शेयर्स, 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है, मतलब क्या 5000 के लिए एप्लीकेशंस आएंगे। 500 ऑफर के लिए 5000 से एप्लीकेशन आ गए, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट अगर मैं करती हूं तो 1/10 मिलेगा सबको। यहां तक भी ओके? पक्का? सो अब क्या होता है देखो, 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर था। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए लिमिट थी 1 लाख रुपीज की। सो अगर मैं 1 लाख रुपीज के लिए अप्लाई करती थी तो मुझे 10,000 वर्थ शेयर्स मिल जाते थे। आर यू विथ मी? 1/10 किया मैंने सीधा। ओके बट प्लीज अंडरस्टैंड 2007-8 आई वॉज डूइंग माई आर्टिकलशिप। तो 1 लाख पैसे देके इन्वेस्ट करना मतलब, आई डोंट कम फ्रॉम अ सुपर रिच फैमिली कि पापा मुझे जरा 1 लाख रुपए चाहिए, ले लो बेटा, ऐसा वाला नहीं है। ओके सो दैट वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी, बट आई वाज इन माई लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। सो उतना 10,000 का तो सेविंग मेरे पास था तब तक। बट मैंने बोला यार इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगी, अप्लाई करूंगी, तो मुझे कितने का मिलेगा? तो मुझे मिलेगा सिर्फ 1,000 का। ये भी मुझे 10,000 के शेयर्स चाहिए मुझे। हाँ अब 1 लाख का तो अरेंजमेंट करना था, कहीं से तो अरेंजमेंट करना था। तो मैंने कहा ऐसे इमोशनल टाइम पे मम्मी बड़ी काम आती है। तो मैंने मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश की, मॉम आई वांट मनी। मम्मी बोली ठीक है पैसा चाहिए ना, कितना? उसने उसकी पर्स निकाली बेचारी ने, उसको लगा पैसा चाहिए मतलब कुछ 100-200 रुपये। तो बोले कितना चाहिए? मैंने कहा 1 लाख। उसने वो पर्स बंद कर दिया और बोला डॉक्टर के पास जाना है क्या? ठीक है ना? तो मैंने कहा अरे नहीं यार, मैं समझाती हूँ तुमको। बेचारी शी कम्स फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, सो उनको तो ज्यादा कुछ पता नहीं इन सब के बारे में। अब माई ब्रदर ऑलरेडी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय देन, माई भाभी वॉज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मम्मी को लगा कि शायद रचना भी कुछ अच्छा खासा कर रही है। आई वॉज ऑल्सो इन सीए फाइनल एट दैट टाइम। तो उसको लगा कि कुछ तो ये स्टडी वगैरह किया होगा। उसने पूछा क्या क्या है, क्या ये फंडा? तो मैंने उसको पूरा बताया सब कि ना डीएलएफ करके बहुत भारी कंपनी है। ओके कुछ नहीं पता था मुझे डीएलएफ का, कुछ भी नहीं पता था मुझे। जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स वर टेलिंग कि डीएलएफ करके एक भारी कंपनी में, बोली थी बहुत भारी है। एंड इतना पता था कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने बोला कंस्ट्रक्शन में बहुत भारी है, तुम्हें बहुत ज्यादा आगे का समझ में नहीं आएगा, ऐसे मैं मम्मी को बता रही थी, बट तुम बिलीव करो मुझ में एंड तुम मुझे पैसा दे दो। एंड व्हाट आई विल डू इज, देखो ये तो ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, मैंने उसको फंडा बताया ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो वैसे भी 1 लाख में से 90,000 तो वापस ही आएंगे, रिटर्न ही आएंगे ना। आर यू गेटिंग मी? 1 लाख के लिए अप्लाई किया तो मिलने कितने वाले हैं? 10,000 के मिलने वाले, तो 90,000 एनीवेज रिटर्न ही आने वाला है। तो मैं आपको 90,000 तो तुरंत रिटर्न कर दूंगी। बाकी 10,000 तो मेरे पास भी है ना एडिशनल, जो इन्वेस्ट हो जाएंगे वो मैं आराम से कर लूंगी मैनेज। वो बोली कितना टाइम लगता है बीच में मुझे वापस पैसा मिलने के लिए? अच्छा एट दैट टाइम इट वॉज रफली अराउंड 1 वीक, 1 वर्किंग वीक, मतलब रफली 7 वर्किंग डेज के टाइम में क्या होता था, आपने अप्लाई किया। सो एप्लीकेशन का डेट मान के चलो, आज एप्लीकेशन का डेट है, टुडे डे 0 इज एप्लीकेशन डेट एंड अलॉटमेंट डेट, इनमें कितने का गैप होता था? रफली 7 वर्किंग डेज का गैप होता था। इज दिस ओके? सो मान के चलो आज मैंने अप्लाई किया, मुझे कब शेयर्स मिलेंगे? आफ्टर 7 वर्किंग डेज। तब मुझे पता चलेगा सस्पेंस कितना अलॉट हो गए, क्या हो गए। ओके मैंने अप्लाई कर दिए शेयर्स के लिए मम्मी से उधार लेके, एंड विद इन 2 days अ न्यूज फ्लैश्ड इन द मार्केट सेइंग दैट डीएलएफ आईपीओ गेट्स अंडर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब का मीनिंग समझते आप? कितने के लिए ऑफर किया था उन्होंने? जितने भी एक्स नंबर ऑफ शेयर्स के लिए उन्होंने ऑफर किया था। मुझे क्या लग रहा था, ये ना 10x होगा, 10 टाइम सब्सक्राइब होगा, ये तो 0.8 सब्सक्राइब हो गया था। इसको बोलते हैं आप अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या इंपैक्ट होगा अंडर सब्सक्रिप्शन का? पूरे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। कितने वर्थ के? 1 लाख वर्थ के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। आई वॉज इन माई 3rd year ऑफ आर्टिकलशिप।
एंड दिस इज 2007-8, सो कैन इमेजिन, तब तो 1 लाख और भी बड़ी अमाउंट है. एंड आई हैड रिसीव्ड शेयर्स ऑलमोस्ट वर्थ ₹98,000 इन माई डीमैट अकाउंट. इतने वर्थ के शेयर डीमैट अकाउंट में आ गए थे. नींद उड़ गई थी मेरे रातों की. मम्मी बोल रही थी ज्यादा टेंशन मत ले. मैंने कहा टेंशन मत ले, मतलब आपके पैसे लौटाने तो है, मैंने मेरे रिस्क पे लिए. मम्मी बोली गलती हो गई थी. मैंने कहा हाँ वो तो हो ही गई है यार, बट अभी कुछ तो करना पड़ेगा मुझे. तो मैं बस रोज भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, बस एक जो लिस्टिंग प्राइस आएगा उसका लिस्टिंग प्राइस अच्छा आने दो. ओके, सो कमिंग बैक टू लिस्टिंग प्राइस कंसेप्ट, उसके लिए इशू प्राइस आपको पता होनी चाहिए ना. ओके, इशू प्राइस कंपनी ने बोला था वी आर इशूइंग द शेयर्स एट 550 रुपीज पर शेयर. इशू प्राइस वाज रफली अराउंड 550 रुपीज पर शेयर. हमारे एक्सपर्ट का प्राइस बैंड याद है क्या आपको? एक्सपर्ट का प्राइस बैंड क्या था? 70 रुपीज टू 80 रुपीज. वैसे उनका प्राइस बैंड कुछ तो 500 टू 550 था. एंड सब 150 लोगों ने बोला 550 का वर्थ है. so, जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन डाला उन्होंने 550 पे एप्लीकेशन डाला था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार फिर से, जैसे अपना एक्सपर्ट का प्राइस बैंड क्या था? 70 टू 80. डीएलएफ का प्राइस बैंड क्या था? 500 टू 550. ये डीएलएफ का प्राइस बैंड था. फाइनली इन्वेस्टर्स जो प्राइस डिमांड करेंगे सब. अच्छा, ये कहां से फिक्स होता है उसके लिए अलग से डिस्कशन है कि व्हाई 550 मैडम, व्हाई नॉट 500, व्हाई नॉट 540. ये डिस्कशन आगे लूंगी मैं आपका, बट फिलहाल समझ लो कंपनी ने कितने में फिक्स कर दिया? 550 में फिक्स कर दिया. सो नाउ यू कैन इमेजिन 550 में प्राइस फिक्स्ड है. मुझे कितने में मिला है शेयर? 1 शेयर कितने में मिला है मुझे? 550 में मिला है. पर शेयर आई रिसीव्ड एट 550. अब मैंने सिर्फ क्या बोला, भगवान 550 के ऊपर लिस्ट करा दो. 5 रुपए भी ऊपर लिस्ट हो गया ना तो ब्रोकरेज निकल जाएगा. आई विल रीपे एंटायर मनी टू माई मदर एंड कान पकड़ लूंगी. इसके बाद किसी के भी पैसे से ट्रेड नहीं करूंगी. जितना भी ट्रेड करूंगी खुद की हैसियत से ट्रेड करूंगी. सो आई वाज वेटिंग. आई रिमेंबर इवन द डे ऑफ लिस्टिंग. मैं कौन से क्लाइंट पे थी ये भी मुझे याद है. क्लाइंट प्लेस पे मैं थी, वाउचिंग करने के लिए बिठाया था सर ने. इट वॉज गोइंग इन फॉर लिस्टिंग. वो कंपनी भी काफी बड़ी थी एंड मैं कंप्यूटर, मैंने बोला लिस्ट वाउचिंग जूनियर को काम पे लगा दिया. मैंने कहा आप भी मत मेरे पास, अगले 10 मिनट मार खाएगा. मैं कंप्लीट कंप्यूटर के स्क्रीन पे कंटिन्यूअस रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश. हो गया कि लिस्ट, हो गया कि लिस्ट. एंड बिलीव इट और नॉट, दिस शेयर गॉट लिस्टेड एट 557 रुपीज. 7 रुपए ऊपर लिस्ट हो गया था. सेम सेकंड मैंने उसको पूरा का पूरा बेच दिया. सेम सेकंड एंटायर 1 लाख के जितने भी शेयर थे सब बेच दिए मैंने. ओके, ब्रोकरेज इसमें कुछ 3-1 रुपए लग गया. 4 रुपए पर शेयर मुझे प्रॉफिट हो गया. टोटालिटी में मुझे कुछ 2-2.5 हजार का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, बट 2-2.5 हजार एट द कॉस्ट ऑफ 2 वीक्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स. ओके, मैंने इमीडिएट पैसा मिल गया क्या, या T+2 पैसा मिला? T+2 पैसा मिला ना. वो 2 दिन में मुझे ऐसे लग रहा था ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा ना मेरा. ऐसे कुछ भयंकर विचार आ रहे थे दिमाग में. बट T+2 में मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो गया. पूरा पैसा मैंने मम्मी को पास दे दिया. बोला अगली बार से अगर मैंने पैसे मांगे तो 2 झापड़ लगा देना मुझे, लेकिन पैसा मत देना. हाँ, एक्स्ट्रा 2.5 हजार ना. अब वो इतना डिटेल में मत जाओ बेटा. वो नहीं दिया मैंने मम्मी को, बिकॉज वो रिस्क मैंने उठाई थी. 2 स्लीपलेस नाइट्स मेरे थे, 2 वीक्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स. ओके, एंड मम्मी को उसी के हिसाब से दिया था मैंने. लॉस हो गया अगर मुझे तो भी आपको 1 लाख पूरा मिल जाएगा. वो भी तो एक रिस्क है ना. लॉस हुआ तो भी मैं ये नहीं बोलने वाली कि फिर लॉस काट के आपको उतना ही दूंगे. लॉस हुआ तो भी आपको 1 लाख रिटर्न मिलना है. प्रॉफिट हुआ तो भी 1 लाख रिटर्न आपको मिलना है. उसी बोली पे मैंने मम्मी से पैसे लिए. ओके, उसके बाद मैंने बोला यार खुद के पैसे से ही कंपलसरी ट्रेडिंग करना है. लेसन नंबर 1 लर्न. लेसन नंबर 2 मैंने क्या बोला, यार डीएलएफ का आईपीओ आया था, अब इसके बाद इस कंपनी के शेयर को तो हाथ ही नहीं लगाऊंगी. मैं इसका शेयर प्राइस भी चेक नहीं करूंगी. सब बेच दिए थे मैंने. आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक रफली 1.5-2 साल के बाद किसी ने मुझे पूछा रचना तेरे को याद है क्या वो डीएलएफ का? मैंने कहा भूल ही नहीं सकती मैं. बोले याद, अभी उसका प्राइस क्या है पता है क्या तुमको डीएलएफ का? मैंने कहा नहीं, मैंने देखा ही नहीं उसके बाद. क्यों, कितना हुआ है? द डीएलएफ आईपीओ प्राइस हैड हिट roughly around 1,200 in next 1.5 year. And देखो जब लॉस होता है तो दुख तो होता ही है.
बट जब लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट होता है, तो इतना दुख हो गया मुझे. मैंने कहा सीरियसली 1200 हो गया. आई चेक्ड इट वाज 1200 के आसपास. आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स यार. तो अगर मैंने वो गट फील अगर रोक के रखा होता था, तो यू कैन इमेजिन सीए बनने के तुरंत बाद विद इन 1 ईयर आई वुड हैव हैड अ कैपिटल गेन ऑफ 1 लाख रुपीज. अमेजिंग. बट नहीं हुआ ना, ये तो सपना ही था सिर्फ, क्योंकि मैंने पूरे शेयर तो बेच दिए थे. एंड ये मैं सेम पूरी स्टोरी सुशील सर को बता रही थी, हु इज वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ एक्सपर्ट एकेडमी, रियल प्रमोटर्स ऑफ एक्सपर्ट एकेडमी. तो बोला रचना मत बता डीएलएफ के बारे में, जा जल्दी जा केबिन से बाहर. क्या हो गया सर? डीएलएफ के बारे में नहीं बताना. मैंने कहा सर अच्छा तो चल रहा है शेयर. ये कब हुआ था बताती हूँ. ये 1.5 ईयर के बाद 1200 था. उसके रफली 2 साल के बाद, उसके रफली 2 साल के बाद मैं सुशील सर के पास गई थी ऐसे ही बताने के लिए. ये किस्सा निकल आया था. तो बोले प्लीज प्लीज डीएलएफ ये नाम ही नहीं लेना है मेरे साथ. मैंने कहा हुआ क्या है? तो he said I had bought this share at roughly around 1150. He had bought it at roughly 1150. एंड उसके बाद जब मैं उस दिन चेक कर रही थी, शेयर प्राइस वाज ट्रेडिंग अराउंड एट 300 रुपीज. आप अगर आज डीएलएफ का प्राइस देखेंगे 160 रुपीज. ओके, सो ये जो शेयर जो 550 का था वो गया था 1200 तक, एंड वो नीचे आज है 2019 में 160 के आसपास. सो जब मैंने सुशील सर का ये सुना 300 रुपीज, मैंने कहा मेरा डिसीजन बराबर था. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपने काफी कुछ सीखा है पिछले 7-8 दिन में अबाउट स्टॉक मार्केट्स. मेनी पीपल विल टेल यू ओनली सक्सेस स्टोरीज. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी टुडे. मेनी पीपल विल टेल यू सक्सेस स्टोरीज. बट जैसे मैंने आपको आज तक कौन सा एग्जांपल दिया था? डीमार्ट का, क्योंकि आपको अच्छा लगना चाहिए. अगर मैं ही डे 1 से लॉस मेकिंग स्टोरीज बताऊंगी तो आप कल से आएंगे ही नहीं. बट सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन. आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड आपको लॉस भी हो सकता है. लॉस कितना लेना चाहिए आपने? जितना आप झेल सकते हो उतना ही लॉस पेयरिंग कैपेसिटी रखो, उतना ही इन्वेस्टमेंट करो. जो 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था, दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन. लॉस आई मीन इतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जो अगर आपको लॉस भी हो जाए ना तो आपको रातों की नींद नहीं उड़नी चाहिए. आज अगर मैं 10,000 का भी लॉस कर लेती हूँ, बुरा लगेगा मुझे, डेफिनेटली बुरा लगेगा, शिट यार 10,000 का लॉस हो गया, बट उससे मेरी रातों की नींद नहीं उड़ने वाली है. क्यों? अब क्या होगा मेरा? दैट विल नॉट हैपन बिकॉज मे बी आई रीच दैट मच लेवल. क्यों? मुझे पता है इसके पहले मैंने 50,000 ऑलरेडी प्रॉफिट किया है. 50,000 में से 10,000 गया, नुकसान हो गया, बट स्टिल आई एम ओके, आई एम इन प्लस. सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन इन्वेस्टिंग. कितना इन्वेस्ट करो? जितना आप सह सको, जितना लॉस आप सह सको उतना ही इन्वेस्ट करो. उतने का स्टॉप लॉस तो लगाओ. सी द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस. अगर सुशील सर ने तब 1150 के यहाँ पे अगर उन्होंने 1100 का अगर स्टॉप लॉस लगा होता था तो आज ये शायद नहीं होता था ना, इतना क्रैश वगैरह होता था, तो भी वी वुड हैव बीन सेफ. स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होना चाहिए. सी नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता था. तो आज ये दिन उनको मैं तो अभी सिर्फ कभी भी अगर सुशील सर दिखे प्रीमाइसिस में तो सिर्फ एक पूछना, कैसे सर? और डीएलएफ का क्या? ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एंटायर कंसेप्ट? आईपीओ में क्या होता है, कैसे होता है? यस, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ आईपीओ. आईपीओ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए मैंने. जैसे ये जो था दैट वाज कट टू कट में निकल गई आईपीओ से. दूसरा एक आईपीओ जो मैंने डीमार्ट का आपको सक्सेस स्टोरी बताया था, जिसमें जो प्राइस पे इशू हुआ है वो प्राइस के ऑलमोस्ट डबल पे लिस्ट हो गया था. लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला अगर एग्जांपल बताऊं आपको, और एक अमेजिंग आईसीआरए, इकरा नाम सुना आपने? आईसीआरए, इकरा नाम नहीं सुना है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ओ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में कभी सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे बताया था ना मैंने. सो इंडस्ट्रियल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये भी एक कंपनी है. दिस कंपनी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ओके, जब इसका आईपीओ था तब मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया था एंड चेक किया कि इसका इशू प्राइस था 300 रुपीज. ओके, एंड ऐसे लग तो रहा था यार ये ना बहुत ऊपर लिस्ट होगा,
इसलिए मैंने जितना अप्लाई हो कर सकती थी खुद के पैसे से उतना मैंने अप्लाई किया था इसके लिए। ओके, मुझे ये इशू कुछ तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अराउंड 17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एंड बोले अब तो हम प्रोरेटा अलॉटमेंट भी नहीं दे सकते, इतना ज्यादा हो गया, आधा आधा शेयर देना पड़ेगा इस गुड़ा, ऐसे ऐसे कुछ तो बहुत भयंकर इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था। इसलिए दे सेड वी विल अलॉट ऑन अ लॉटरी सिस्टम। 17 में से एक को ही देना है, 17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया ना, तो बोले आइदर 1 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे या फिर 17 में से एक बंदे को देंगे पूरे पूरे। सो उन्होंने डिसाइड किया 17 में से एक लॉटरी सिस्टम निकालेंगे। बाय द वे आज इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? लॉटरी सिस्टम चलता है। आज इंडिया में आईपीओ के बारे में जब भी बात चलेगी, यू विल गेट द शेयर्स ऑन लॉटरी सिस्टम। ये लॉटरी सिस्टम क्या है जानना आपको? बताओ लॉटरी सिस्टम क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर दिस एग्जांपल बताती हूँ, 2 मिनट में एग्जांपल खत्म हो जाएगा। आईसीआरए के लिए लॉटरी सिस्टम लगा था, एंड लॉटरी सिस्टम में तो अपना नसीब, ऐसे लॉटरीज में कभी भी नहीं लगता है, एंड मुझे एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। इश्यू प्राइस था 300, इट गॉट लिस्टेड एट अराउंड 900 रुपीज। बम्पर लिस्टिंग, 3 टाइम्स इसका इश्यू प्राइस ओपन, मतलब इश्यू प्राइस के 3 टाइम्स इसका लिस्टिंग प्राइस ओपन हो गया था। सो दुख कब होता है? अगेन वन मोर टाइम, मैंने अप्लाई किया था लेकिन एक भी शेयर नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने भी अप्लाई किया था एंड ही वॉज अमंग दैट 1 ऑफ 17। तो और भी दुख हो गया। ओके यार, मुझे एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं है, वो मजे कर रहा है, एंड ऐसे टाइम पर बार बार देख रहे क्या मेरा आईसीआरए कितना हो गया, हाँ रख फोन अभी मैंने। ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर केस ऑफ अ बम्पर लिस्टिंग, 3 टाइम्स ऊपर चला गया था। अब ये लॉटरी सिस्टम क्या होता है आपको बताती हूँ। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, अगर कोई भी शेयर 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है, 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो ओनली 1 person, 1 application, I will say 1 application out of 5 applications will get the shares. Are you with me? Only 1 out of 5 will get the shares. पुराना सीन क्या था बताती हूँ, पुराना 2007-8 का सीन क्या था बताती हूँ। पुराना सीन ऐसे था कि जितने हायर अमाउंट के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतने अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते थे। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। कल अगर आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल बताया था इसका कि कोई भी आईपीओ जनरली मिनिमम लॉट साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने का आता है? रफली अराउंड 15,000। कल का याद है क्या आपको? मैंने बोला था लॉट साइज से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आता है? जनरली अराउंड 15,000 आता है। यहां तक ओके? पुराने जमाने में कैसा था, अगर आप 15,000 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको शेयर्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते थे। इसीलिए सब क्या बोलते थे, ज्यादा के लिए अप्लाई करो, ज्यादा के लिए अप्लाई करो, आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। सो आई ऑलवेज यूज टू अप्लाई फॉर हायर स्लैब्स। मैं हमेशा बोलती थी मेरे को ना 90,000 के शेयर्स चाहिए, मेरे को ना 80,000 के शेयर्स चाहिए, ऐसे बोलती थी मैं। ओके, बट आज का सिनारियो क्या है? टुडे वी टॉक अबाउट लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, आप कितने रुपीस के लिए अप्लाई करते हो दैट डज नॉट मैटर। आप 15,000 लोएस्ट स्लैब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो भी चलेगा, आपको उतने शेयर्स तो मिलेंगे। ओके, मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। 15,000 मान के चलो, कंपनी का इश्यू प्राइस इज 1,000 रुपीज। आर यू विथ मी? इश्यू प्राइस कितना है? 1,000 रुपीज। फटाफट बोलना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया है। अरे 15,000 इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इश्यू प्राइस इज 1,000, नंबर ऑफ शेयर्स 15। यहां तक ओके? अब लॉटरी सिस्टम लगने वाली है, थोड़ा लॉजिक देखो इसका। ये कोई नहीं पढ़ाता, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करती हूँ इसीलिए आपको बता रही हूं मैं। अब मुझे पता है, लॉजिकली सोचो, मुझे पता है कि 1 out of 5 के आसपास जाएगा ये। 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मेरे घर के जितने ज्यादा एप्लीकेशंस जाएंगे उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट इज हायर। आपको इसका सिंपल एग्जांपल बताओ तो आपने हाउजी खेला होगा कभी? हाउजी खेला है? वो टिकट देते हैं सबको, कोई तो नंबर कॉल आउट करता है। नहीं खेला है हाउजी? कभी नहीं खेला आपने? क्या आप बात कर रहे हो यार। एक कोई तो गेम कंडक्ट करता है,
उसके पास एक नंबर्स की थैली रहती है, वो नंबर कोई तो उठाता है, नंबर 59, फिर आपको चेक करना आपके टिकट में नंबर 59 है क्या, तंबोला. आपण खेळूया उद्या. ठीक है, ओके चलो. सो अगर आपको ये पता ही नहीं है गेम तो छोड़ दो. अगर लॉटरी का सिंपल एग्जांपल बोलूं तो सिंपल एग्जांपल है, मैं लॉटरी की दुकान में जाती हूं, मैं एक टिकट लेके आती हूं, मेरा विनिंग का प्रोबेबिलिटी कम है. अब मैं क्या करती हूँ, विनिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं उसी स्कीम के 10 लॉटरी टिकट्स ले लेती हूँ. अब मेरा विनिंग का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. मैं उसी स्कीम के 50 टिकट्स लेके आती हूँ, मेरा विनिंग का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. यहां तक ओके. सेम चीज मैं अभी ज्यादा से ज्यादा लॉटरी लगेगी, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक लॉटरी टिकट लू या 5 लॉटरी टिकट लू. 5 लॉटरी टिकट लूंगी. 5 लॉटरी टिकट इधर कैसे आएंगे, सिंपल वर्ड्स है. मैं मेरे अकाउंट से एक अप्लाई करूंगी, पर्सनल अकाउंट रचना रानड़े. अब मैं एक अकाउंट ले लूंगी मेरे हस्बैंड का, हस्बैंड को बोलूंगी तुम भी अप्लाई करो. सो सेल्फ, हस्बैंड को भी बोला तुम भी अप्लाई करो. अब मदर इन लॉ का डिमैट अकाउंट मैंने खुलवा लिया है. फिर बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने. पैसा हमारे ही होगा, शेयर्स हमारे ही होंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट आपके, नाम आपका. ओके, बोली मेरे को नहीं शेयर्स करना है. मैंने कहा आपको, आप सिर्फ अकाउंट खुलवा लो बस, बाकी कुछ नहीं करना आपको. ओके, पैसे भी हम ही डालने वाले हैं. बट मदर इन लॉ के नाम से एक एप्लीकेशन डाल दिया, अब एक फादर इन लॉ के नाम से एक एप्लीकेशन डाल दिया. सेम ओल्ड स्टोरी. आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं, अकाउंट खुलवा लेंगे, हम सब बाकी देख लेंगे. HUF पता आपको क्या होता है, व्हाट इज HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. HUF का डिमैट अकाउंट हो सकता है क्या? हाँ, HUF का डिमैट अकाउंट हो सकता है. कैन HUF अप्लाई फॉर IPO? यस. ठीक है. अब अक्षय रानड़े HUF, हमारी एक HUF, इससे एक एप्लीकेशन डाल दो. फादर इन लॉ का भी HUF है, उनका भी डिमैट अकाउंट खुलवा लिया है. अरविंद रानड़े HUF, उनके अकाउंट से एक डिमैट खुलवा लो. आजकल कई सारे ब्रोकर्स है जो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम ऑफर करेंगे या फिर फ्री भी करा देंगे. कोई कोई ब्रोकर, जैसे मेरा ब्रोकर जो है ईडलवाइस, दे हैव कम अप विद अ स्कीम राइट नाउ. नए अकाउंट ओपनिंग के लिए फर्स्ट 3 इयर्स नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस. 3 साल के लिए 1 रुपए भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है. आप जितना शेयर्स लोगे उतना सिर्फ ब्रोकरेज, अच्छा ब्रोकरेज तो सबको देना पड़ता है, बट मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं है. जब उन्होंने ये स्कीम निकाली मैंने कहा वेरी गुड, खुलवा लो अकाउंट्स. 3 साल तक तो टेंशन नहीं है ना. 3 साल जितना पैसा कमाएंगे उसमें से फिर आगे के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भर देंगे, नो इश्यूज. तो मैंने ये सभी, अभी देखो 1 2 3 4 5 6, इफ आई वांट अच्छे शेयर के लिए 6 एप्लीकेशंस डालते हैं. एंड कैसे करेंगे, स्लैब तो 15,000 के डालेंगे. मान के चलो हमारे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए. पुराने जमाने में क्या करते थे, 1 लाख का एक ही एप्लीकेशन डालते थे, ताकि प्रो राटा अगर है तो मुझे, जो लोग हाईएस्ट स्लैब के लिए डालते थे ना उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता था. पुराना जमाना, इन सिंपल वर्ड्स, अमीर लोगों को एडवांटेज ज्यादा था पुराने जमाने में. आ रही के बात समझ में? जो लोग 90,000 1 लाख के लिए अप्लाई करेंगे उनको चांसेस ज्यादा रहते थे पुराने इसमें, अमीर लोगों को फायदा. अब बोले सबको फायदा, सबका साथ सबका विकास. अब बोल रहे लॉटरी सिस्टम लगेगी, आप 15,000 के लिए डालो या फिर 90,000 के लिए डालो, लॉटरी सिस्टम चलेगी. सो एटलीस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. कैसे चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड किया, समझ में आया? 6 अकाउंट्स. देखो इफेक्टिवली मेरा 1 लाख ही इन्वेस्ट हो रहा है ना, इफेक्टिवली 1 लाख इन्वेस्ट हो रहा है. बट इंस्टेड ऑफ 1 अकाउंट विथ 1 लाख आई एम डूइंग 6 अकाउंट्स विथ 1 लाख. 90,000 के आसपास हो गया. दैट इज ओवर लॉटरी सिस्टम वर्क्स. पक्का क्लियर है क्या? सो आपको अभी समझ में आया ना, आगे जाके आपको खुद को भी क्या करना है. अभी ये यहां तक कहानी खत्म नहीं होती है. मतलब इफ आई वांट, माइनर अकाउंट खुल सकता है क्या डीमैट का? डीमैट अकाउंट खुल सकता है माइनर का. जैसे मेरा बेटा है, 5 साल का मेरा बेटा है, उसका डीमैट अकाउंट खुलेगा क्या? Yes or no? Any idea? Demat account of a minor can be opened. It is allowed. Of course, operator, मैं उसको ऑपरेट करूंगी. जो हम बोलते हैं ना, ही इज नॉट, अपने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह तो पढ़ा है ना, माइनर कांट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, बट द गार्डियन विल एक्ट ऑन हिज बिहाफ. सो अकाउंट तो खुलेगा, गार्डियन विल ऑपरेट. नेक्स्ट प्लान वो है मेरा.
7th अकाउंट का क्लियर है अभी तक? लेकिन पक्का? अरे उसको कितना भारी लगेगा व्हेन ही बिकम्स अ मेजर. 18 साल होने के बाद उसको लगेगा ओ शपथ मेरे पास इतने शेयर ऑलरेडी है. मेरे को बोलेगा बाय मम्मी चला. इसलिए ज्यादा शेयर उसमें नहीं रखने, फिर वो ट्रांसफर करा लो अपने पास. ओके ठीक है. तो ये पूरा सिस्टम समझ में है आपको? लॉटरी सिस्टम क्या होता है यहाँ तक क्लियर है? पक्का? मैंने आपको प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये भी बताया. अब आपको एज अ स्मॉल होमवर्क करना क्या है बताती हूं. आपको कोई भी एक प्रोस्पेक्टस फ्री डाउनलोड होता है, पैसे नहीं डालने को बोल रही, फ्री डाउनलोड होता है. कोई भी एक प्रोस्पेक्टस आप फ्री डाउनलोड करा लो मोबाइल में. कोई कोई छोटे प्रोस्पेक्टस भी होते हैं, छोटे 300-400 पेजेस के छोटे प्रोस्पेक्टस होते हैं वो, है ना. उसमें आपको कई सारे टर्म्स मिलेंगे. प्रोस्पेक्टस के फर्स्ट पेज पे ढूंढना भी नहीं, आप बोलेंगे मैडम हमारे आर्टिकलशिप चालू है, मजाक कर रहे हो क्या. प्रोस्पेक्टस के फर्स्ट पेज पे या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखो आप, विच कंपनी इज कमिंग विद एन आईपीओ, उसके फर्स्ट पेज को आपको ढेर सारे कंसेप्ट मिलेंगे. लाइक इनका मर्चेंट बैंकर कौन है. चलो सबके लिए कॉमन होमवर्क दे दूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा. आपको क्या करना है, डीमार्ट का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है. लिख लो डीमार्ट का प्रोस्पेक्टस. एंड उसमें आपको मुझे बताना है कि इनका मर्चेंट बैंकर कौन था. बिकॉज आपको लाइव एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे ना. मर्चेंट बैंकर कंसेप्ट तो समझ में आया, लेकिन इंडिया में कौन कौन मर्चेंट बैंकर है ये नहीं पता अपने को अभी तक. सो कौन कौन मर्चेंट बैंकर है ये भी पता चलेगा. अब आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ. जरूरी है कि एक ही मर्चेंट बैंकर होना चाहिए या मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स भी हो सकते हैं? मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स भी हो सकते हैं. सो आपको ऐसे भी शायद देखने को मिल सकता है कि डीमार्ट के लिए 4 मर्चेंट बैंकर्स थे, 5 मर्चेंट बैंकर्स थे, 6 मर्चेंट, ऐसे भी हो सकता है. सो इन सिंपल वर्ड्स ये सभी लोग मिलके आईपीओ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. ये सभी लोग मिलके फंडिंग उठाने में मदद कर रहे हैं. यहां तक ओके? मर्चेंट बैंकर का फंडा क्लियर है? कैन आई से ही इज द होल एंड सोल, ही इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट द इशू. मर्चेंट बैंकर मेनली फंडिंग उठाने में मदद करता है ना मेरी. यस. 2-3 कंसेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. जैसे उसने एक कंसेप्ट क्लास के स्टार्ट में बताया था, सो लेट मी कवर अप दैट एज वेल. सेकंड वाज द कंसेप्ट ऑफ अंडर राइटर. ओके, अंडर राइटर कौन है ये भी शायद आपको प्रोस्पेक्टस में ही मिल जाएगा. अंडर राइटर काम क्या करता है बोलो? इफ द शेयर्स गेट अंडर सब्सक्राइब्ड, ओके, देन अंडर राइटर क्या करता है, जितना भी कम सब्सक्राइब हुआ था उसको वो फिलअप कर लेता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वर 100. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वर 100 एंड एक्चुअल एप्लीकेशंस रिसीव्ड वर ओनली फॉर 80. कितने का शॉर्टफॉल है? 20 का शॉर्टफॉल है. तो रहने दो ना, क्या टेंशन है. हाँ यस. सो ये आपने सीए में पढ़ा होगा दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90 शेयर्स के लिए तो आना ही चाहिए. 90 के अंदर अगर आप रुक जाते हो तो यू हैव टू कैंसिल योर इशू. ओके. सो अब ये कितने का शॉर्टफॉल हो गया बोलो मुझे? 10 का शॉर्टफॉल है ना. कौन मदद करने के लिए आने वाला है? अंडर राइटर. अंडर राइटर बोलता है डोंट वरी, आई विल सब्सक्राइब फॉर 10 शेयर्स. अभी आपको दिखने में 10 बहुत चिल्लर दिख रहा है, दैट विल बी इन लैक्स ऑफ शेयर्स इन रियल लाइफ. कौन सब्सक्राइब कर रहा है? अंडर राइटर. वो ऐसे टाइम पास के लिए रिस्क उठा रहा है क्या? नहीं, मैं उसको क्या देती हूँ? अंडर राइटिंग कमीशन देती हूँ मैं उसको. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अंडर राइटर हु विल सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स विच आर ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड. अंडर सब्सक्राइब्ड जो गैप है ये एक्चुअल सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बीच में, क्या वर्ड बोला मैंने? एक्चुअल सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बीच में जो गैप बचता है, हु सब्सक्राइब्स फॉर दैट? अंडर राइटर. विल राइट डाउन दिस वन लाइनर फॉर एन अंडर राइटर. अंडर राइटर. अच्छा, अंडर राइटर एक पर्सन होगा या इंस्टीट्यूशन होगा? जनरली इंस्टीट्यूशन होगा. ओके, एन इंस्टीट्यूशन which subscribes for difference between what and what? Tell me. Minimum subscription and actual subscription. शेयर से वर्ड ही नहीं आया क्या अपने सेंटेंस में? द इंस्टीट्यूशन विच क्या लिखवाया मैंने? द इंस्टीट्यूशन number of shares.
ओके, सो हमारे एग्जांपल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था? बाय द वे दिस 90% इज ऑलवेज देयर, दैट इज सेबी नॉर्म, एंड एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था? 80. सो ही विल सब्सक्राइब फॉर हाउ मच? 10 shares एंड ही विल गेट कमीशन. ओके, डाउट? लिस्टिंग प्राइस का बेस क्या होता है? ओके, सो विल कम टू दैट. हाँ, यस, मेनली इट इज डिमांड सप्लाई ओनली. ओह, हाउ विल द मार्केट नो? जैसे अभी डीमार्ट का वापस से एग्जांपल लेंगे तो इश्यू प्राइस कितना था बोलो? इश्यू प्राइस वाज 300, द प्राइस एट विच इट वाज इशूड. एंड व्हाट वाज द लिस्टिंग प्राइस? लिस्टिंग प्राइस वाज रफली अराउंड 600. ये डीमार्ट का बता रही हूं. आईसीआरए का 900 था. ओके, अब देखो एक बार इशू बंद हो जाता है, इशू बंद हो जाता है, इसके लिए वो पूरा प्रोसेस एक्चुअली कल आ रहा है. बट इफ यू वांट टू स्टिल अंडरस्टैंड क्विकली, व्हेनेवर यू इन्वेस्ट फॉर एन आईपीओ, एक विंडो पीरियड होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो आईपीओ में. विंडो पीरियड होता है सिर्फ 3 दिन का. 3 दिन का विंडो पीरियड मतलब, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान के चलो 10th ऑफ February को कोई आईपीओ ओपन हो रहा है. 10th Feb, 11th Feb, 12th Feb, खत्म. आपको अगर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ ये 3 दिन में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो. यहां तक ओके? एक बार फिर से, कंपनी से, अच्छा लेट्स गो बैक टू आवर एक्सपर्ट एकेडमी एग्जांपल. हमको एक्सपर्ट को शेयर्स इशू करने थ्रू एन आईपीओ. कहना है जब भी अप्लाई करना है करो, आपके टाइम, जब भी टाइम मिलेगा करो. ऐसे होगा क्या? या विल आई गिव देम अ डेडलाइन? डेडलाइन दी जाती है. व्हाट इज द डेडलाइन? 10th Feb टू 12th Feb. इन 3 दिनों में ही आपको इन्वेस्ट करना है मेरी कंपनी में. यहां तक ओके? 12th February को उसका इन्वेस्टमेंट डेट खत्म हो जाएगा. रफली आज बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग इनटू पिक्चर, 12 फरवरी को ही इवनिंग के आसपास ही पता चलता है कि शेयर कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया या अंडर सब्सक्राइब हो गया. इनफैक्ट आजकल तो ऐसे भी होता है, एंड ऑफ फर्स्ट डे, एंड ऑफ सेकंड डे, ये अपडेट होते रहता है अलग अलग वेबसाइट्स पे कि फर्स्ट डे पे शेयर इज सब्सक्राइब टू 0.8%. Day 2 gets fully subscribed. Day 3 gets oversubscribed by let us say 10 times or 12 times or whatever. ये पूरा डेटा आजकल अपने को इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है, शाम तक अवेलेबल हो जाता है. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड. ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है. इन सिंपल वर्ड्स क्या हो गया बोलो? जितने लोगों को क्रेविंग था कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बहुत लोगों को नहीं मिलेगा. अब वो क्या बोलेंगे? मुझे नहीं मिला तो लेट मी एटलीस्ट ट्राई टू गेट द शेयर द डे इट गेट्स लिस्टेड. सो लिस्टिंग डे के जस्ट पहले, प्रीवियस डे से, या फिर लिस्टिंग डे एकदम प्रीवियस डे भी नहीं होगा, जब लिस्ट होने वाला है सेम डे पे वो ऑर्डर्स बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे. एंड विथ मोर एंड मोर डिमांड और बढ़ेगा. कुछ न्यूज भी आ सकता है, जैसे निगेटिव न्यूज भी आ सकता है. क्विक हील सुना है सबने? क्विक हील इट्स अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाली कंपनी. बेस पता है कौन से सिटी से बेस्ड है? इट्स अ पुणे बेस्ड कंपनी. इट गॉट लिस्टेड एट अ प्राइस बिलो इट्स इशू प्राइस. सो यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक, मुझे भी एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं है, मैंने खुद अप्लाई किया था इसके लिए. 150 रुपए का इसका इशू प्राइस था. इट गॉट लिस्टेड समवेयर अराउंड एट 140. क्यों? क्योंकि उसका लिस्टिंग के एक दिन पहले कुछ तो न्यूज आया दैट देयर वाज सम लिटिगेशन गोइंग ऑन अगेंस्ट क्विक हील, एंड आई गेस ऐसे कुछ तो न्यूज आया था कि वो दे लॉस्ट दैट केस और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग दैट केस. बुरी न्यूज आ गई मार्केट में. तो जितने लोगों को तब नहीं मिला था वो बोला अब नहीं लेंगे, जितने लोगों को मिला था वो बोले बेच दो. प्रेशर किसका आ गया? सेलिंग प्रेशर आ गया. सेलिंग प्रेशर आ गया ना. जिनको मिला था वो सेल करने लगेंगे, जिनको नहीं बोला था वो बोले यस अच्छा हुआ नहीं मिला, वी विल नॉट बाय. सो बायर्स नहीं है, सेलर्स आ गए. सो प्राइस विल फॉल ऑफ. एक चीज आपको और बता दो, अपना मार्केट टाइमिंग क्या होता है? ओपन एट 9:15. बट वेन एवर इट इज द लिस्टिंग ऑफ एनी आईपीओ, वो शेयर 9:15 बजे ओपन नहीं होता है. दैट शेयर गेट्स लिस्टेड ऑन द मार्केट एट 10 AM. क्यों मत पूछो, ये नॉर्म है, सेबी का रूल है, मैंने नहीं बनाया, सेबी ने बनाया. ओके, सो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए. ये आपको अगर जॉट डाउन करके रखना है तो इवन इफ मार्केट टाइमिंग इज 9:15, डे 1 ऑफ लिस्टिंग द शेयर गेट्स लिस्टेड एट 10 in the morning, not 9:15. Is this okay? So लिस्टिंग होगा एट 10. पक्का क्लियर है? कई सारे कंसेप्ट आज किए, बहुत ज्यादा कंसेप्ट आज किए.
राइट फ्रॉम, आज के कौन कौन से कंसेप्ट के इतने ही बोला सिर्फ. फर्स्ट कंसेप्ट आज कौन सा किया? आईपीओ वर्सेस ओएफएस. ओएफएस क्या था? एवरीवन नाउ. ओएफएस वाज ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल में न्यू शेयर्स आर इशूड या प्रमोटर खुद अपने शेयर्स बेचता है? प्रमोटर खुद अपने शेयर्स बेचता है. सेकंड कंसेप्ट हमने क्या बोला था? आईपीओ में फ्रेश शेयर्स बनाए जाएंगे मतलब आउट ऑफ अनइशूड कैपिटल एंड दे विल बी सोल्ड टू द न्यू इन्वेस्टर्स. थर्ड कंसेप्ट एफपीओ. एफपीओ क्या था? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर. कौन निकालता है? कंपनी विच इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज एफपीओ. चौथा कंसेप्ट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू में फर्क है. फेस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. बुक वैल्यू इज द एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जितने भी आएंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो रहेगा आपका बुक वैल्यू. ठीक है. नेट वर्थ भी बोलेंगे उसको. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मर्चेंट बैंकर. अपना नॉर्मल बैंकर होता है क्या? सेविंग अकाउंट खोलना है भैया, वैसा वाला नहीं. मर्चेंट बैंकर कौन से बड़े बड़े काम करता है? दो मेजर काम जो करता है, मर्जर्स एक्विजिशंस में मदद करता है, फंडिंग उठाने में मदद करता है. ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बुक बिल्डिंग इशू. बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है? हम डिक्टेट करते हैं क्या, ये 75 रुपए लेना है तो ले लो अदरवाइज भाग जाओ, या फिर हम उनको प्राइस बैंड ऑफर करेंगे. प्राइस बैंड ऑफर करेंगे 70 to 80 एंड जैसे जैसे बिड्स आते रहते हैं वैसे बुक बिल्ड होते रहेगा. ये एक्चुअल बुक बिल्डिंग क्या होता है ये मैं आपको कल बताने वाली हूं. बिकॉज बुक बिल्डिंग से ही आपको पता चलेगा कि हाउ डिड कंपनी डिसाइड कि क्या प्राइस होगा. मतलब सिर्फ 1 मिनट मैक्सिमम अटेंशन दे दो. अपना प्राइस बैंड कितना था? 70 to 80 था. कंपनी ने बोला ठीक है वी विल फिक्स आवर इशू प्राइस एट 80. ये कंपनी ने कैसे फिक्स किया 80? या फिर कंपनी बोलता है वी आर फिक्सिंग एट 75. ये कैसे फिक्स किया उन्होंने 75? दैट डज हैपन थ्रू बुक बिल्डिंग इशू. एंड ये कैसे होता है ये कल आ रहा है. इज दिस ओके? यस. और क्या किया हमने बुक बिल्डिंग के बाद? prospectus. It's like an offer document which contains entire details of the company. Next concept